Our main speakers are weavers who are right now in very different remote locations across Kutch. And for those who probably are not familiar with the Indian subcontinent, Kutch is in the northwestern region of India, and it's a semi-arid place, so actually pretty remote and not completely urbanized as well. So it's an interesting learning experience for all of us who've tried to organize this with the weavers, to have them on their mobile phones, using basically a 4G or a 3G network, to join us on the Zoom call. So a few things before we begin in terms of just procedures. As I said, we may have a little bit of a sketchy network when any of the viewers are speaking, so please be patient. Uh, Most of the viewers are going to speak to us in either Gujarati or Hindi, but we will translate it for those, for most of everyone who we hope understand English. They are the only three languages we can hold for this particular session. We may not be able to do it in other languages right now. So I'll start with what is Vikalp Varta and what was the idea around Vikalp Varta. Vikalp Varta is basically a series of dialogues on alternative transformations that are happening in India that we are bringing together online. It's been conceptualized by Vikalp Sangam, which is a group where it's an online platform where which is a collective of stories and ideas discussing alternatives that have been applied across various fields of development activities, with the endeavor to create a space of common action, knowledge sharing, building partnerships. And Ashish Kothari, who's on this call with us, he'll tell us a little bit more about Vikalp Sangam. Meanwhile, Vikalp Varta was conceptualized during this phase of the COVID crisis, because usually Sangam means a collective of a space. And we've been doing Sangams across India for about 3-4 years now, where people gather together. But in this new situation, we are not going to be physically able to come together. But it's just the physical distance that's a barrier. But I think the social interactions can happen. And hence we thought we should have these dialogues going on. Yes, we are all in lockdown, but we plan to continue these dialogues going on even once we go back to our so-called new normal. So I'm not going to talk more. I'll first hand over the space to Ashish, who will tell us a little bit more about Vikalp Sangam, and then we'll come back to today's session. Ashish? Thanks, Joey. Namaste, sab logon ko. Good evening, everybody. So just quickly, Vikalp Sangam started in 2014 as an attempt to try and bring together people who are working on alternatives, on solutions, on ways of meeting our needs and aspirations in ways that are ecologically sustainable, but also are socially equal, equitable, which meet everybody's needs, which don't create inequality, which don't create ecological unsustainability, and so on. And that is across the whole range of efforts, whether it's on environment or livelihoods or health or education or arts, culture, settlements, cities, rural areas, knowledge, economics. So all different kinds of areas that are covered under this. And the idea is to also bring together the people who are working on these issues. So for instance, one of the things we do is to organize sangams, either regional ones where people from a particular state or a region can get together. So in the context of today's webinar, we did a Vikalp Sangam in 2015 in Kutch, where many of the groups and communities of Kutch that are doing work came together. So there are regional ones, and then there are thematic sangams, such as, for instance, sangams on democracy, on food, on health, and different kinds of themes where people from around the country working on these issues, looking at alternatives, practicing them, are able to come together. The sangam process also involves a lot of documentation, writing stories, articles, inviting people on the ground to write stories or making films,
doing documentaries and audio podcasts and various different forms by which these stories can be told. So this is the website on which you will find about 1500, 1600 stories and perspectives from different parts of India on all these different topics that I just mentioned. So in particular, with relation to the current crisis, the Vikalp Sangam process is also trying to, it has a blog space in which different kinds of initiatives, not just for relief, but also those that are pointing to alternatives to the crisis, are being put onto that blog spot. I'll put the blog ID in the chat box. And also in this webinar series, Vikalp Varta. And then we're also doing a series of documents that showcase alternative solutions on the ground. So right now, if one of the biggest crises is livelihoods of migrant labor or livelihoods of people in villages and cities which have been lost because of the lockdown, what are the kind of alternatives that are available on the ground where people can be more self-reliant, where there can be livelihoods generated locally within the village itself or within the urban community, so that people don't have to migrate long distances? Or if there's a crisis for food, what are the kind of alternatives that are available right now of where local food exchanges are possible and it's organic and healthy? So this is the kind of documentation that we're also trying to put out right now in response to the current crisis. Thank you, Joey. Back to you. Thanks, Ashish. आप थोड़ा इसको जिस्ट में गुजराती में भी समझा देंगे. We may have some local Kutch callers as well. Just a quick. જી હા, તો મારું એ કહેવાનું હતું કે વિકલ્પ આજે વિકલ્પ વાર્તાની જે શૃંખલા છે એ એક વિકલ્પ સંગમ નામની પ્રક્રિયાથી શરૂ થઈ છે. વિકલ્પ સંગમ લગભગ 2014માં શરૂ થયેલી, જેમાં એનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ, મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતું કે ભારતમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જે લોકો સારું કામ કરે છે, આજીવિકાનું કામ કે સ્વાસ્થ્યનું કામ કે શિક્ષાનું કામ કે પર્યાવરણ બચાવવાનું કામ કે કલાઓનું કામ, હસ્તકલાઓને પાછી લાવવાની, જે સારું કામ જેનાથી પર્યાવરણને પણ નુકસાન ના પહોંચે અને જે બધાને મળી શકે, જેનો લાભ બધાને મળી શકે, જેનાથી સમતા વધી શકે, અસમતા વધે. હમણાં આજકાલની વિકાસની પરિભાષામાં અસમતા વધે છે અને પર્યાવરણનું નુકસાન થાય છે. તો એના શું વિકલ્પ છે, એ વિકલ્પોને એક સાથ લાવીએ અને એક મંચ એવું ઊભું કરીએ જેનાથી એકબીજા સાથે આપણે આદાન પ્રદાન કરી શકીએ, એકબીજા સાથે વધારે કામ કરી શકીએ, એકબીજાથી શીખી શકીએ. અને એની સાથે સાથે આ આખા ભારતમાં આ રીતની જેટલી બધી કહાનીઓ ચાલી રહી છે, ગતિવિધિઓ થઈ રહી છે, એનું ડોક્યુમેન્ટેશન, એની ફિલ્મો બનાવવાની, એના ઉપર વાર્તા ચાલુ કરવાની, જેવી રીતે આ વિકલ્પ વાર્તા છે. અને હમણાં ખાસ કર જે કોરોના વાયરસથી જે ક્રાઇસિસ થઈ છે એના માટે વિકલ્પ સંગમમાં એક તો આ ડોક્યુમેન્ટેશન ને બધું તો જારી રહ્યું જ છે, પછી આ વિકલ્પ વાર્તાનું વેબિનારનું શરૂ કર્યું છે. એની સાથે એક બ્લોગ સ્પોટ પણ છે જેનું હું હમણાં તમને આઈડી ચેટ બોક્સ પર આપીશ, કે આખા ભારતમાં જે રિલીફનું કામ થઈ રહ્યું છે અને જેમાં વિકલ્પ પણ દેખાય છે એનું ડોક્યુમેન્ટેશન એ બ્લોગ સ્પોટ પર છે. અને એની સાથે ઘણું બધું નેટવર્કિંગ બીજી સંસ્થાઓ સાથે, સંગઠનો સાથે, કે આ ક્રાઇસિસથી ઉભરીને આપણે કઈ રીતે ઇમિડિયેટ રિલીફ તો કરવાની છે જ, પણ એની સાથે સાથે લાંબા સ્તર પર શું જાતના આપણે સમાધાન નીકાળી શકીએ કે આવી ક્રાઇસિસને વધારે સારી રીતે આપણે ડીલ કરી શકીએ. Thanks, Ashish. Thank you. Welcome to the new people who've just joined us. As I mentioned it already, even in our invite to everyone, that this will be a bilingual session. So please do be patient with us while we do the translations, or when one of our speakers is going to speak in their local language and we'll translate it in English for you. So moving ahead to the session of today, the story that we are telling is the youth weaving a new story in Kutch. Our last two sessions that we had, Varta sessions that we've had, has been with the Gurgaon Farmers Market and the Deccan Development Society, which was mostly focused on farming, which is a very important practice and one of the primary occupations of our country, and around organic and traditional farming. But today, being Labor Day, and usually we have the Vartas on Saturdays, but we decided to have it today on 1st of May to celebrate Labor Day and celebrate the handloom and handicraft practice in our country.
as this is the second largest employment sector after farming in India. Since crafts in general have never been given a priority by any of our governments, it's strange, but the government census provides us a number of 11 to 13 million. But yesterday I was on another call, and Mr. Ashok Chatterjee, the head of Crafts Council of India, told us that it's anywhere between 50 to 73 to 250 million. And it's a number that we cannot really ignore. Handloom weaving is one of our oldest craft traditions in India and has close to across 26 lakh weavers in our country. Again, this is just a speculated number. A proper census has never been done. And just going back into history, till the mid-19th century, India used to be the largest exporter of hand-woven cotton cloth in the world. And all of India at that time wore hand-woven textiles, what Gandhiji called as khadi. But then introduction of cheap mill-made fabrics by the British, setting up of large industrial cotton mills within India itself, changed the entire scenario. Then with technology and industrial technology advancing, it became very possible for handloom-based products to be made cheaper by power looms and ultimately on automatic looms, which completely depleted the handloom craft practice. Okay, I'm just going to stop for a minute. I request जो भी हमारे कॉल में शामिल हुआ है, आप आपका माइक म्यूट पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा. धन्यवाद. जूही आप बोल रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए. अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ है. Okay. So, most of, I'll just switch on the video. Can you see me? Okay. Yeah. So, and basically most parts of our country, craft has always been practiced because it was not just a commodity, but a way of life. Certain areas got encompassed by the industrial setup, and they lost their practices. But where our governments could not bring industry, the craft practice and craft traditions continue to survive, but have been facing great challenges and hardship. So coming to Kutch, and why we chose to work with, to start the story with Kutch is one of, it's like, as I said, in one part of our country, and it's also a district, but it's as big as the state of Kerala. It's rich in biodiversity, but it's a semi-arid zone. But the areas always had a very rich craft practice, which includes weaving, printing, dyeing, metal and woodwork, and even pottery. This region has also been very prone to natural disasters historically, the recent one being the earthquake in 2001. But the people of this region, which mainly comprise of the farmers and the pastoralists, have a very resilient force in them that keeps them going all the time. There have been numerous changes that have happened in terms of livelihood, where markets have opened up, external influences have come in, formal education systems came into the space. That kind of changed the way the communities in these spaces also started living and growing in aspirations. So a lot of them started giving up on their traditional occupation because they did not see that much patronage coming in anymore and moving to cities and casual labor work, as all of us know what's happening. But in 2007, Khamir, a craft resource center, was founded by Abhiyan and Nehru Foundation for Development with the aim to facilitate the conservation and prevention of the crafts of Kutch. And through innovation, design, technology, and market research, Khamir's worked very closely with the community of this district and has really paved ways for many transformations in the traditional livelihood area. Handloom weaving being one of the key occupations, and it almost revived itself post 2007 with the correct interventions. And a lot of this onus goes on the youth and the women of this community. And hence, the stars of our today's session are 7 young weavers
We were supposed to have 2 women weavers, but we have only Raji Ben with us, who are going to speak to us about their work and also about the current situation, because we know we are here and we have to just move forward. So we want us to look at the positives in the story of transformation and take that forward as an inspiration, more than, you know, discuss only what's been a challenge or a negative format. So I welcome, and आप लोग सब अपने cameras on कर लो, हमारे speakers. So I'll just quickly tell you who are around with us. So Suresh Vankar, अधोई से, सुरेश आप अपना कैमरा ऑन करो, प्रियंशी आप अपना कैमरा ऑफ करो, थैंक यू। फिर सुरेश और उसकी बहन है सरली से, विच इज अनदर विलेज इन कच्छ, नमस्ते। अशोक भाई फ्रॉम भुजोड़ी, आपका कैमरा ऑन करो अशोक भाई, दिख नहीं रहे आप। ऑन है, ऑन है, ऑन है, अच्छा मेरे स्क्रीन पे नहीं है। ओके, और फिर अरुण हैं रुद्र माता से जी, नमस्ते। विनोद, नमस्ते। विनोद और मनसुख कोटाई से नमस्कार। और राजीबेन अवधनगर से। I will now actually introduce a good friend of mine, I should say now, Ghatit Leru, who is also the director of Khamir. He's been working with Khamir for the last 10 years now and has been a huge guiding light for, I think, all of us who have worked in Kutch, and specifically for the artisans there. So Ghatit's going to tell us a little bit about Khamir, the organization. I'm sure many of you who are on this call probably know about Khamir, but still for the newcomers, a little bit about Khamir, and then take us through this whole story of the weavers, which happened across a 2.5-year study that has just been completed along with Kalpriks, which Ashish Kothari is a part of, and they will tell us a little bit more. And then we'll get on to listening to the weavers. So Ghatit, over to you. Juhi, do you want to introduce also Paresh Bhai? And I can. Oh yes, sorry. Prakash is also there. Prakash is also there. Okay. So sorry, Paresh Bhai, वही होता है ना, light थोड़ा आपके face पे आता तो अच्छा लगता. So Paresh Mangalya, who's on the call and looking very shy and coy, he's the deputy director of Khamir. He has spent 14 years in Khamir, and with the sector and in Kutch, and very much Kutch ka ladka, about 22 odd years. Paresh Bhai is like the go-to man for everybody in terms of material, design, technique, to a large extent, across all crafts, not only the weaving craft. So thank you Paresh Bhai for everything you do, और हम आपको भी बोलने का मौका देंगे. प्रकाश भाई, आप मेरे स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई दे रहे, बट नमस्ते और वेलकम कि आप. प्रकाश का नाम आ रहा है. प्रकाश भाई अपना वीडियो ऑन कर दीजिए. हाँ प्रकाश, सुनाई दे रहा है आपको? Fine, we'll get him later, Ashish. Yeah. We'll just move forward. So Ghatit, over to you. Please tell us a little bit more about Khamir, Kutch, the weavers who are with us. Okay, नमस्कार मित्रों. जैसे जूही बेन ने शुरुआत में बताया, कच्छ एक सेमी अरिड रीजन है और ये नॉट ओनली इंडिया बट एशिया का सबसे क्राफ्ट रिच रीजन है. बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ईयर सेंचुरीज से माइग्रेशन करते करते यहाँ पे सेटल हुई है और वो अपने साथ अपनी ब्यूटीफुल क्राफ्ट ट्रेडिशन लेके आई है, जो आज कच्छ की जो सम टोटल कल्चर और क्राफ्ट ट्रेडिशन है वो अपनी स्ट्रेंथ यही कम्युनिटीज से ड्रॉ करता है. उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन क्राफ्ट है वो हैंडलूम वीविंग की है. खमीर की शुरुआत 2000 रजिस्ट्रेशन हुआ और 2007 में कच्छ में भुज के जो उसका कैपिटल सिटी है उसके बाजू में जो कुकमा है विलेज, उसके बाजू में क्राफ्ट पार्क है जहां से हम ऑपरेट करते हैं. हमने 2007 से ये क्राफ्ट पार्क में अपने काम की शुरुआत की और वीविंग पहले से खमीर का एक कोर फोकस रहा है अलोंग विथ ऑल द अदर क्राफ्ट्स, क्योंकि उस पोस्ट अर्थक्वेक
का जो टाइम पीरियड था उसमें वीवर्स बहुत बड़ी तादाद में वो अफेक्ट हुए थे और उनकी मार्केटिंग चैनल, उनके वर्कशेड, उनका मटेरियल, वो सब पे काफी गहराई से काम की जरूरत थी। तो हमने शुरुआत से ही कच्छ वीवर्स पे फोकस होके हमने काम किया। उसी प्रक्रिया में हमने दिल्ली में 3 एग्जीबिशन किए थे, जो वीवर सोलो एग्जीबिशन थे, जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कच्छ के वीविंग के ब्रांडिंग में और बायर्स के साथ इंटरेक्शन में। वो एग्जीबिशन के बाद बहुत सारे कच्छ के जो वीवर्स थे उनको नए नए मार्केट मिले, नए ऑर्डर मिले और ऐसे कच्छ की वीविंग वापस से अपनी पटरी पे, अपने सुरताल में आने लगी। उसी दौरान खमीर को एक अंदाजा आया कि जो मार्केट है वो बहुत अच्छे तरीके से अभी मूव हो रहा है लोकल प्रोडक्ट पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे। और हमने कच्छ में वापिस आके देखा कि कच्छ में बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स के सोर्स थे, जिसके साथ हमारे दूसरे साथी ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे। जैसे कि एक साथी ऑर्गेनाइजेशन है सात्विक, वो यहाँ के ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ काम करता था और यहाँ के ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स फार्मर्स थे जो ईस्ट कच्छ में थे, उनको भी एक मार्केट की और एक आउटलेट की जरूरत थी। तो उस जिसको हमने वो कॉटन इंडिजिनियस वैरायटी का कॉटन था, जिसको हमने बाद में काला कॉटन करके नाम दिया। और वो अपने आप में काला कॉटन अभी एक ब्रांड है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिजाइनर, बहुत सारे बायर्स काला कॉटन के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही काला कॉटन की वैल्यू चेन डेवलप हुई और उस वैल्यू चेन के डेवलपमेंट के बाद उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। वो एक इंडिजिनियस लोकल वैल्यू चेन था, जिसमें यहाँ के फार्मर्स के पास से कॉटन लेके उसका जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन खड़ा किया गया। और उसके बहुत सारे परिणाम ये आए कि बहुत सारे यंग वीवर्स जो एक नए मार्केट की या नई प्रोडक्ट की रेंज की तलाश में थे, वो कच्छ वीविंग की श्रृंखला में वापस जुड़ने लगे। काला कॉटन के काम को एक टाइम होने के बाद ये पूरी विकल्प संगम की कच्छ में प्रक्रिया हुई और तब हम आशीष भाई और उनकी टीम के परिचय में आए और हमने सोचा कि हम कैसे ये जो विकल्प संगम की प्रक्रिया में से जो उनका फॉर्मेट था, अल्टरनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, उसको लेके हम कच्छ के वीवर्स के साथ खमीर का जो काम है उसको हम कैसे नए तरीके से देखें। तो शुरुआत में हमारी इच्छा थी कि हम एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट पे उसको देखें। उसके बाद हमने और गहराई से वो फ्रेमवर्क भी समझे और हमारे जो प्रेसिडेंट है सुषमा अयंगर, उन्होंने हमें वो फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम हमारे पर्यावरण के साथ हमारे सामाजिक संबंध कैसे है, हमारे आर्थिक संबंध कैसे है, हमारे सांस्कृतिक संबंध कैसे है। तो ये सब संबंधों के नजरिए से हमने वो फ्रेमवर्क को समझा और बाद में हमें लगा कि हम इस फ्रेमवर्क को लेकर वीवर्स के साथ जो खमीर का अभी तक का काम हुआ है उसको हम थोड़ा जांच पड़ताल करें। इसलिए खमीर और गल्फ ब्रिक्स ने साथ में मिलके और कच्छ के वीवर्स ने साथ में मिलके ये पूरा स्टडी किया था। बड़े बड़े तौर पे वो स्टडी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। वीवर्स की आय और इनकम पहले से ज्यादा बड़ी है। बहुत सारे यंग वीवर्स वीविंग में शामिल हुए हैं। कच्छ वीविंग की एक खासियत ये है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में कच्छ के वीविंग के साथ जुड़ रही है। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। कास्ट को लेकर जो पहले भेदभाव किया जाता था वीवर्स के साथ, वो भी हालांकि वीवर्स का एम्पावरमेंट वीविंग के थ्रू होने के बाद वो कम हुआ है, ऐसा हमें स्टडी में जानने में आया। और कच्छ में वीवर्स की क्रिएटिविटी जो है वो एक अपनी ऊंचाई पे पहुंची है। वो बहुत सारे मार्केट के साथ डील करते हैं, बहुत सारी टेक्निक है वीविंग है, उसमें कारपेट की भी वीविंग होती है। कारपेट में भी खरड़ कारपेट, रेगुलर कारपेट, उस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे मशरू करके एक बहुत ही बढ़िया वीविंग की टेक्निक है जिसमें शॉर्ट विथ लूम पे काम किया जाता है।
और कच्छ की अपनी शॉल बनाने की एक्स्ट्रा वेफ टेक्निक की एक अपनी परंपरा है। सो ये बहुत सारी टेक्निक के साथ जुड़े हुए व्यूवर्स को हमने ये स्टडी के थ्रू देखा और हम उनसे मिले, और हमने पहले सोचा था कि हम सब गांव कवर करेंगे, लेकिन हमने 15 गांव तक स्टडी को लिमिट किया। लेकिन उसमें पॉजिटिव जो एस्पेक्ट थे उसके साथ ये भी देखने को मिला कि इसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इनकम बढ़ी है, उसके कारण इनइक्वालिटीज भी ऑफ इनकम भी बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जो सिटी के नजदीक होने की वजह से या उसकी वजह से उनको एक्सेस ज्यादा मिला है। हालांकि बहुत सारे विलेजेस जो इंटीरियर में है वो उतना एक्सेस मार्केट का नहीं कर पाए हैं, वो भी हमको देखने को मिला। बहनों का जुड़ना एक पॉजिटिव प्रक्रिया रही, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि बहनों के जो Ghatit, we lost you. Sorry, we've lost you, Ghatit. अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ओके, सो बहनों की जो वीविंग के बारे में बढ़ने की बात थी, हमने ये भी देखा कि उनके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ रहा है, वो एक पूरा था। और एक कलेक्टिव एक्शन, जो सोशल मोबिलाइजेशन और कलेक्टिव एक्शन का थोड़ा कमी हमको दिखाई दिया। तो ये मोटे मोटे स्टोर पे ये हमने सब स्टडी की दौरान ये देखने को और समझने में आया। आशीष भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, दो चीजें ऐड कर दूंगा और उसके बाद मुझे लगता है घटित भाई शायद थोड़ा सा ब्रीफली आप ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा। दो चीजें ऐड करनी थी। घटित भाई ने बोला उसमें स्टडी में, एक तो ये कि जैसे घटित भाई ने बोला, पहले जो ये क्राफ्ट था हैंडलूम वीविंग का, ये सबसे ज्यादा लोकल ट्रेड के लिए ही होता था, वहीं की कम्युनिटीज के साथ आदान प्रदान होता था कई मतलब दशकों के लिए जब से शुरू हुआ है। लेकिन पिछले कुछ 20-30 साल में और खासकर पिछले 10-15 साल में जो है ये ट्रेड अब और ज़्यादा व्यापक नेशनल और ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया है। खासकर जो काला कॉटन का जो पूरा इनोवेशन है उसका मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इनकम लेवल्स वगैरह ज़्यादा बढ़ी हैं, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, मार्केट अच्छा मिलने से। लेकिन एक तो उसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है कि उसका जो पर्यावरण का असर है वो भी बढ़ा है, क्योंकि अब लोकल की जगह जो है वो शिप में या एयरप्लेन में जो है दूर दूर जगह पे जाता है। तो उसका एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट असेसमेंट भी हम लोगों ने किया इस स्टडी में, और वो सारे आंकड़े स्टडी के रिपोर्ट में हैं। दूसरा ये भी देखा कि इसके विपरीत पहले जैसे काफ़ी कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो बदल गया था, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मटेरियल्स आ रहा था, और उसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था वो काफ़ी बड़ा होता होगा। लेकिन अब काफ़ी काला कॉटन जो लोकल है, जो ऑर्गेनिक है, जो वहीं पे उगता है, लो वाटर यूज़ है उसका, उसकी वजह से फुटप्रिंट कम भी हुआ है। तो मतलब दोनों प्रोसेसेस हमने देखे। और एक और चीज़ जो है आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया है ये ट्रेड, क्योंकि बाहर के मार्केट पे डिपेंडेंट है। और जब बाहर के मार्केट नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि अभी स्थिति है कि आप ट्रेड जो है ज़्यादा फिजिकल ट्रेड नहीं हो पा रहा है इस क्राइसिस में, इस करंट क्राइसिस में, तो उसकी वजह से थोड़ा और सेंसिटिविटी, फ्रेजिलिटी जो है इस ट्रेड में आया है। तो शायद ये भी सोचना होगा कि कम से कम कुछ हद तक क्या इस ट्रेड को वापस स्थानीयकरण, वापस लोकलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये चर्चा अभी ऑलरेडी वनकर समाज में भी चालू है, और आज के युवा लोग जो बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर इस पे कुछ ना कुछ अपने विचार रखेंगे। पटित भाई? So yeah, the study was also throwing many different aspects, as Ashish Bhai told, and I'm just doing the translation. The major part was that there is an economic revival seen in the Kutch, and as compared to other part of India where the weavers are leaving their weaving and joining other occupation, in Kutch it is seen that the weavers are joining back, and many of the young weavers are joining back. That was the part. There are
villages like Sriracha, which were predominantly industrial towns, and that villages were surrounded by many industries and power plants. In that villages also, the weaver started their weaving again. And women's role in the weaving has increased. Weaving has helped to reduce the caste disparities and sort of differences that weavers are facing due to the caste, that has reduced. And it also flowered the creativity among the young weavers, and weavers started reaching various markets. Also, some of the not so positive aspect came during the studies, that the economic income rise also lead to inequality among the various villages, particularly the villages which are very near to the markets has more access, and that's where they are gaining more. And also the burden on the women has increased. They are doing additional work, but their day-to-day responsibility, household responsibilities are still there. So that burden has increased. Also, as the weavers started participating in the markets which are out of their reach or international market, the overall footprint of the ecological footprint of the weaving work has also started increasing. And it was seen that there was a absence of collective mobilization of weavers. However, there are various institutions now started organizing weavers and working in form of a collective action. Ashish Bhai, you want to show some of the clips of the films that we developed during the study? So there are 6 films which are under process at present. We managed to show a clip of a youth film, because today's session we are focusing on the youth and viewers who have tried to create a space for themselves. Yeah. કચ્છના વણકરોના જીવન અને આજીવિકામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર બદલાવ આવ્યો છે. આ સમુદાયના યુવાનોએ તેમના સમાજમાં આવેલા આ પરિવર્તનને સમજાવવા માટેના એક અભ્યાસના ભાગરૂપે આ શ્રેણીબદ્ધ ફિલ્મો બનાવી છે. આ અભ્યાસ વણકર સમુદાય, ખમીર અને કલ્પવૃક્ષનો સહિયારો પ્રયાસ છે. मैं वैसे सोचता हूँ कि जैसे कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है, जो भी है, जो पढ़ता है वो जैसे किताबों में या वगैरह जिसमें भी कंप्यूटर है, जिसमें भी वो पढ़ता है, तो उसी तरह ये लूम जो है वो हमारा कंप्यूटर है. जैसे कि इस लूम में जो भी इसकी सेटिंग रहती है, उसका पूरा जैसे हमारे दिमाग में उसकी सेटिंग होती है, उसी तरह हमारे लूम में वही उसी तरह से सेटिंग करना पड़ता है. इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम दूसरी जॉब करते हैं तो वहाँ पे पूरा टाइम देना पड़ता है 8 घंटे, और किसी और के लिए एज अ जॉबर काम करना पड़ता है. जबकि हमारा जो वणर काम है वो ऐसा है कि हम खुद अपने बॉस हैं इस वणर काम में, और ज़्यादा टाइम इसमें दे के ज़्यादा काम कर सकते हैं. अगर कम टाइम है, कहीं पे आना है, कहाँ जाना है, तो हम एकदम फ्री रहते हैं इसमें. પ્રકાશ એવા અનેક યુવાનો પૈકીનો એક છે જે બીજી તકો હોવા છતાં પણ વણાટ સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે, કે પછી ઉદ્યોગો, બાંધકામના વ્યવસાયો કે અન્ય નોકરીઓમાંથી વણાટમાં પાછા આવ્યા છે. पैसों का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कंपनी में जाना शुरू कर दिया. कंपनी में जा रही थी लेकिन वहाँ पे बहुत काम हार्ड था. वीविंग पापा का देख रही थी, वो काम अच्छा भी है, घर पे भी है और पैसा अच्छा कमा सकते हैं, हाथ का काम है. तो फिर मैंने इसलिए शुरू किया और उसको लेके अभी मैं यूके गई. मतलब इससे ही पता चलता है कि ये काम का कितना डिमांड है. यूके तो वहाँ जाना बहुत बढ़िया रहा. लाइफ में ऐसा पहली बार देखा सब कुछ, जैसे टीवी में हूँ.
काम में तो कुछ वैसे तो फ़र्क नहीं आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ को और नई नई जगह पे जाऊँ और नए नए फ़ोटोज़ लेके उनको व्यू करूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट बार सौम्य कला विद्यालय में मैंने पहली लड़की हूँ जो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू लिया था और मैं पास हो गई थी। और मेरे पीछे कुछ हमारे गांव की लड़कियाँ वो भी इंस्पिरेस हो रही हैं और वो भी कह रही हैं कि हम भी जाएंगे। वैसे बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गांव की लड़कियाँ भी वीविंग में कुछ कर सकती हैं ऐसी। નવી ટેકનોલોજી એ પણ નવા બજારો સુધી પહોંચાડવા અને નવો કાચો માલ શોધવા માટે ઘણી મદદ કરી છે. હવે આખા વિશ્વમાંથી લોકો તેમના ઉત્પાદનો ખરીદી શકે છે અને તેમને નવા ઉત્પાદન બનાવવાનું કહે છે. मार्केट का तो क्या है कि जब पहले तो हमको ढूंढनी पड़ती थी मार्केट, अभी क्या है कि सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज़्यादा फ्रेंड होते हैं। कोई बाहर जाओ, कोई किसी का बुटीक होता है बेंगलोर साइड, अहमदाबाद, मुंबई, तो वो भी खुद हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि ये ऑर्डर है, ये भी आप हम काम कर दो। वो भी एक्टिवेट अच्छी रहती है, सोशल मीडिया पे भी काम अच्छा हो रहा है। रॉ मटेरियल में ज़्यादातर क्या है कि पहले तो हमारे भुज साइड से रॉ मटेरियल करता है, मैं अपने डिटेल्स शेयर कर जो આ હકારાત્મક પરિવર્તન સમુદાયના મજબૂત સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક મૂળિયા ઊંડા હોવાને કારણે ટકી રહ્યું છે. યુવાનો પણ પોતાની પરંપરા સામાજિક મૂલ્યોના આધારે પોતાના સર્જનાત્મક કામમાં ઉદ્યોગોમાં એક ઘરેડમાં માત્ર થતા કામ કરતા નવું મૂલ્ય જોઈ રહ્યા છે. પહેલાં જેના પર આંશિક રીતે આધારિત હતા તેવા હાથ વણાટના વ્યવસાય માટે વૈશ્વિક બજાર ખોલતા હવે સમયપાલન, કામની ડેડલાઇન અને પરસ્પર સ્પર્ધાનું પ્રમાણ વધ્યું છે. वीविंग है तो वो एक पूरा कुटुंब का काम है, एक पूरी फैमिली अगर उसमें काम करेगी तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, वरना वो नहीं आ सकता. तो मतलब संयुक्त रहेंगे, एक बड़ा परिवार रहेगा तो वो काम आसान होगा और जल्दी से हो सकेगा. और जो हमारे पापा हैं, दादा हैं, उनके साथ रहेंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस रहता है. वीविंग जो ऐसी है कि पूरी फैमिली को जोड़े रखती है. अभी क्या है कि धीरे धीरे लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या वहाँ भाग रहे हैं तो उससे टूट रहा है. तो अगर टूटेगा तो वीविंग कमज़ोर हो जाएगी उस हिसाब से. અમે ઘણા ગામોમાં વણાટકામ વધ્યું છે તેવી વાત સાંભળી. તેના ઘણા કારણો જોવા મળ્યા, જેવા કે આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, પોતાની ઓળખ, સામાજિક સંબંધ, ઘરે કામમાં અનુકૂળતા, નવી બજારો વગેરે. અમે એવા ઘણા યુવાનોને મળ્યા જે આ વણાટને પૂર્ણ સમયની આજીવિકા કે વ્યવસાય તરીકે અપનાવી રહ્યા છે. તેના કારણે હાથવણાટનું આધુનિક સ્વરૂપ ઊભું થઈ રહ્યું છે, જે તેની પરંપરાને સ્વરૂપે આગળ વિકસી રહ્યું છે. Thank you, Ashish. Thank you, Ghatit. जूही बहन, जस्ट टू से कि ये फिल्में जो हैं वहीं के 5-6 युवाओं ने ज़्यादातर शूट की है, एडिटिंग वगैरह भी अहमदाबाद में बेस्ड ग्रुप जो है दृष्टि उसके साथ. और हमारे कल्पृष के साथी भी शायद इस कॉल में है जिन्होंने इस स्टडी में भाग लिया था. तो अर्पिता जिन्होंने फिल्मिंग में काफ़ी मदद की, कल्पना, कंकना जो वहीं पे रह के फुल टाइम स्टडी में थी, और राधिका भी शायद इस कॉल पे हैं. प्लस हमारे वणकर साथी भी शायद कुछ इस कॉल में है. सीनियर वणकर साथी का एक पूरा टीम था. इनमें से शायद हो सकता है कॉल में कुछ लोग हों. तो 5-6 जो सीनियर साथी थे उन्होंने भी इसमें पूरी तरह से मदद की. आई थिंक वी शुड जस्ट एक्नॉलेज. उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट. And Ashish, we also have Durga and Meera, the senior consultants of Khameer, who are also on this call. Are they on the call? Yes, very yes, nice. they are. Yeah, they are board members of Khameer. Oh, they are board members of Khameer. Sorry, my bad. Yes. So they are also on this call, who were very much a part of this study as well. तो थैंक यू आप सबका कि आपने ये स्टडी साथ में डाला. अब आई एम सॉरी कि ये पूरे सेशन का संदर्भ
देने में ही हमें आधा घंटा लग गया है, बट जिसके लिए हम मेनली कलेक्ट हुए हैं हमारे वीवर्स, हम उनके साथ अब बातचीत शुरू करेंगे। घटित भाई विल एक्ट एज द सूत्रधार, तो ये हमको हर वीवर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करके फिर हमारे साथ हमारे वीवर्स ही हम बात करेंगे। So Ghatit, over to you. If you have an issue with your connection, just let us know. We'll take it over. No, it is working very well now. ठीक है, तो शुरू करें। सब लोग वीवर्स को सुनने में उत्सुक है, हमें नहीं। या सो हम शुरुआत करेंगे राजीबेन वनकर से। राजीबेन अवधनगर करके गांव में रहती है। उनका जो नेटिव विलेज है वो कोटाई है, एंड वो प्लास्टिक वीविंग के साथ जुड़ी हुई है। रिसेंटली उन्होंने अपना एक एंटरप्राइज की शुरुआत की है, और एक बहुत ही मुहिम प्रयास है नीलेश भाई का कारीगर क्लिनिक, उनके साथ जुड़ के उन्होंने ये एंटरप्राइज को एक नया रूप दे रही है। उनकी ब्रांड का नाम ही राजीबेन है। मैं राजीबेन को बोलूंगा कि अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी बात के बारे में डिटेल में बताए। राजीबेन, Juhi Ben will require your help in the translation. Okay, I'll do that. Thank you. Yeah. चलिए राजीव बहन। चलिए, नमस्ते सबको। मेरा नाम राजीव बहन है और मैं अवधनगर गांव में रहती हूँ, और पिछले लगभग 12-13 साल से। तो मैं जहाँ पे जब रहने के लिए आई थी, उससे पहले मैं बचपन की मेरी बात करूँ तो मैं लगभग 14-15 साल की, तब से मुझे वीविंग का शौक था बहुत। तब से मैं थोड़ा तब ऐसा रिवाज था कि औरतें या बहनें कोई वीविंग काम नहीं करती थी, सिर्फ आदमी करते थे, और बहनें जो है वो ताना बोबिन में सिर्फ मदद करती थी। तब से ऐसा लग रहा था कि ये काम ऐसा क्यों है कि आदमी कर सकती है और औरतें नहीं कर सकती। तो तब तो मेरी उम्र छोटी थी, फिर भी मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत था, और मैं थोड़ा अपना बड़े बाप का बेटा था जी भाई करके, जो मेरे भाई हैं, उनसे मैं सीखी थी पहली बार। उन्होंने मुझे सिखाया था। उनको ये लग रहा था कि अच्छा ये इसमें अगर सीखे तो तब से मैं सीखी थोड़ा बहुत वीविंग भी। तब एक्रिलिक वूल का शॉल बनाते थे उस वक्त में, तो उसमें मैंने पहली बार काम किया था। और उसके बाद में शादी हो गई मेरी 18 साल में, और जब मैं 27-28 साल की हुई तब मैं विधवा भी हो गई। जैसे देखा जाए तो बीच में काम छोड़ दिया था। शादी के बाद वीविंग का काम मैंने छोड़ दिया, बच्चों में पड़ गई थी और घर के काम में पड़ गई थी। तो फिर उसके बाद जब मैं 27 साल की 28 साल की हुई और मेरा पति का देहांत हो गया, उसके बाद मैंने फिर से वो वीविंग का काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ पे काम करूँगी। अवधनगर गाँव में फिर रहने के लिए आई थी पहली बार, क्योंकि जब उधर मेरा काम तो बंद हो गया, हमारा जो भी मेरे हस्बैंड काम करते थे उसका ध्यान तो क्या। फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तब जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं अवधनगर गांव में आई और 1 साल तक इधर उधर काम किया, तो मजदूरी जैसे खेती काम किया, कड़िया काम किया, ऐसे काम कर रही थी। उसके बाद फिर एक खमीर करके संस्था थी जो पास में कुकमा गाँव में, वो अवधनगर के गाँव में पास में ही है, थोड़ा लगभग 2 किलोमीटर जितना दूर है। तो वहाँ पे वीविंग का काम पहले से शुरू कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ पे एक बहन की जरूरत थी, जैसे ताना बोबिन के लिए। तब केशव जी काका करके वो उसमें जुड़े हुए थे पहले से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको खमीर में काम करना है अगर, तो आप एक संस्था है, आप आ सकते हो, वहाँ पे अच्छी आपको मदद मिलेगी शायद, क्योंकि खास ऐसी बहनों को वो संस्थाएं हैं जो मदद करती है, तो आगे कैसे ले जाए वो राजीबेन, हम आपको अभी स्टॉप करेंगे, हमें थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा बीच में। Yes, I was making notes. Okay. So Raji Ben is from this village called Awadnagar, which is close, about 16 kilometers from the main Bhuj town. She moved there 12 to 13 years ago. Otherwise, she's from Kotai village. And she learned weaving before her marriage at her hometown by her uncle, because she was very interested in weaving. And what she says is that actually this whole weaving practice is known more as a male practice, because the men sit on the loom and weave, and what the women do is only help in like the pre-processes
of filling, of warping or filling up the spindles and things like that. But she was very interested in actually being able to learn how to weave. And her uncle did teach her weaving, and then she started weaving a bit. She used to weave acrylic shawls, which was what was Kutch's known product at that point of time. But when she got married at the age of 18, she stopped weaving and started taking care of her children, etc., and the household activities. She got widowed around at the age of 27, and did not know what to do. She wanted to start some work because she knew she had to take care of herself and her children, but was trying to find a direction and probably a job. And that's when she got to know about Khameer. And there was, she mentions Keshavji Kaka, who's an elderly from the village and an elderly weaver, who was looking out for a lady who could help him, who was working with Khameer as a weaver and was looking for a lady who could help him with the pre-processes. So that's how she got started with Khameer. आगे खमीर आप पहुंचे राजी बहन, उसके बाद क्या हुआ? ओके, जब से मैं खमीर में जुड़ी उसके बाद तो जैसे मेरी पूरा क्या कहते हैं वो जिंदगी बदल गई। जैसे मैं खमीर पहली बार जुड़ी तब उधर भी 1 साल तक मैंने वही काम किया। ताना बॉबिन केशवजी काका और खेंगार काका थे सब, तो उनके साथ 1 साल तक वो काम कर रही थी, 1-1.5 साल तक। उसके बाद एक लड़की आई वहाँ पे, डिजाइनर थी, वो वहाँ पे आई थी और उनको कुछ वीविंग में नया करना था, तो वो सोच रही थी कि क्या किया जाए। फिर वो पॉलीथीन बैग के ऊपर सोचा उन्होंने कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट है जो है वो बहुत हानिकारक है, तो वो उन्होंने थोड़ा पॉलीथीन बैग लेके आए और उसको वॉश किया, कट किया, वीविंग किया, उसका शीट बनाया। तो तब मुझे उसके साथ रखा गया और उन्होंने बोला कि आप इसके साथ रहो, वो कैसे वीविंग नया कुछ कर रहे तो आप थोड़ा देखो, फिर हम सीखते हैं। तब मुझे थोड़ा आइडिया आया कि वो अच्छा है। खमीर संस्था को वो भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सिर्फ वीविंग का काम नहीं था, वो उसमें बहुत सारे ऐसे बातें जुड़ी हुई थी कि वो पर्यावरण को भी बचा रहे थे और उसमें ऐसी बहनों को भी जोड़ सकते थे जो रोजगार की जरूरत थी। जिस बहनों को, मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो छोटे बच्चे वाली जो है, कोई बूढ़ी औरत है जो बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकती, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा काम था। तो तब हम वो फिर खमीर लोगों ने सोचा कि हम इसको आगे कैसे ले जाएं, तो उसके लिए फिर हम बहनों का एक मीटिंग जोड़ा, उसमें 15 बहनों को जोड़ा, उसको तालीम दिया गया, उसको उसमें सिखाया, तो वो काम बहुत अच्छा लगा। जब उसको शॉप में रखा गया, जो सीट बनाई थी, कुछ बैग बनाए, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी पहले, तब वो बाहर के लोग जो आते थे उनको बहुत अच्छा लगा था। तब वो सोचे कि अब इसको हम आगे कैसे ले जाएं, ज़्यादा अगर ऑर्डर है तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके बाद बहनों को, हमारे अवधनगर की बहनें जो है वो ज़्यादातर वीवर ही है सब लोग, तो उनको वीविंग करना थोड़ा बहुत आता था, और जिनको नहीं आता था उसको खमीर संस्था ने तालीम दिया और थोड़ा बहुत घर के जो मेंबर थे वो उसमें हेल्प करते थे। तो उसके बाद इस तरह से बहनों को भी सिखाया, उसमें बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई, सिर्फ वीविंग में भी नहीं, और कटिंग की कुकमा की बहनें बहुत सारी थी, वो उसमें जुड़ी। और भुज में जो बहनें हैं कचरा उठाती है, तो उस बहनों से जो हमने प्लास्टिक कलेक्ट करते थे तो उसको भी उसमें हेल्प मिल रही थी, पैसा देते थे उसको भी हम खमीर संस्था ने। तो इस तरह से उस काम को बहुत आगे तक हम ले गए। फिर उसमें लगभग मैंने खमीर में 7-8 साल तक वही काम किया प्लास्टिक का। और आसपास के गांव में अहमदाबाद है, भरूच है, भावनगर है, तो वहाँ पे हमने तालीम के लिए भी जाते थे और बहनों को भी सिखाते थे कि ताकि इसको हम आगे कैसे ले जाए और ज़्यादातर प्लास्टिक को कैसे अच्छा किया जाए, ना कि उधर उधर फैले। तो उसमें हम बहुत मेहनत, खमीर संस्था ने बहुत उसमें हम मुझे मेहनत कर रहे थे और मुझे भी मदद कर रहे थे कि आप आगे जाओ और आगे बहनों को सिखाओ। जब ये सब थोड़ा मुझे बहुत सीखने में आ गया, उनको लगा खमीर को क्या आप अपने ऊपर पैरों के ऊपर खड़ी हो सकती हो, आप खुद का काम कर सकती हो। तो अभी इन्होंने अभी लगभग 4 से 5 महीना मैंने खमीर छोड़ा है, मैं खुद का वीविंग का काम कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं इतना बता देती हूँ, फिर आप अपने खुद का काम के बारे में बताना। So Rajiv Ben was with Khameer, and there was a designer that came to Khameer who wanted to try out weaving with discarded plastic. And so she was asked to assist this designer. And when she started working with the designer, even Khameer as an organization found that entire technique of picking up waste plastic and weaving it very, very novel as an idea.
from an environmental perspective as well, and as also as a new design innovation. So they got Raji Ben to get herself trained in that entire process and technique with the help of the designer. And then as a project, because the organization found it very novel and started taking it forward, Raji Ben got the opportunity to really become an integral part of the project. And then they also thought that this could be an easy technique to bring in women to weave, because it's always also believed that, you know, you need to have a very high skill to do the traditional Kachi weaving. And this was a very simple format of weaving. So they created a women's collective where most of the women in her village itself knew a bit of weaving or got trained by Khameer or by their family members into this basic weaving technique. And a collective started working around this whole plastic weaving technique with women. She says that this project of recycled plastic weaving not only got women to start weaving, but there were other women who did not know weaving, but could participate in the pre-process of, you know, preparing the plastic by cutting it, etc., for it to go onto the loom. She adds on also that apart from those women, there were also the women who were like the plastic rack pickers who were in Bhuj and from where they used to procure plastic, also found this a very interesting idea and felt more encouraged in the work that they were doing. And so she continued with this project for 8 years with Khameer. In that period of time, she traveled to various cities across India where they trained more people into this particular technique and kept you know, increasing it because it needed that kind of training and push. It's after 8 years that she kind of felt that she could go independent and become an entrepreneur herself. So she just started telling us a story about it. She quit Khameer about 4 months ago, and let's listen to her as to what she's doing now. Raji Ben, अब आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो उसके बाद जब मैं खुद का शुरू किया, अब लगभग 4-5 महीने से मैं अब खुद का कर रही हूँ काम। तब मैं सोच रही थी, मैं अपना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोच कर रही हूँ, लेकिन फिर इसको मैं कहाँ बेचूंगी, क्या उसमें से नया बनाऊंगी, वो थोड़ा सोच था। तब मुझे ऐसे पहली बार लग रहा था। वैसे खमीर ने तो मुझे बोला था कि आप जो कुछ भी बनाएंगे उसमें हम आपको मेहनत भी करेंगे, अगर कहीं नहीं बेच पाएंगे तो हम भी लेंगे आपसे, पहले आप शुरू करो, अब और कैसे आप बनाते वो आप चालू करो। तो मैंने चालू किया, लगभग 1 महीना हुआ था मेरे को तब मैंने शुरू किया। तब तो फिर मैं नीलेश भाई करके एक हैं जो अहमदाबाद में, वो कारगिल क्लिनिक संस्था का नाम है उसका, उनको पता चला कि ऐसी वो ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि ऐसी बहनों को उनको काम कैसे उसको आगे ले जाए। तो उनका फ़ोन आया मुझे और एक बार वो फिर मिलने के लिए आया हमसे। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ऐसे आगे काम लेके जाना है आप वीविंग कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें नया चीज़ क्या बनाऊँ, नया प्रोडक्ट क्या बना, वो मुझे नहीं पता था, उसकी सिलाई का वो सब। तब उन्होंने आए और उन्होंने बोला कि आप वीविंग करो और हम आपको नए प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसमें क्या नई चीज़ बनानी, वो हम आपकी मदद करेंगे। तो आप अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो और हम आपको पूरी मदद करेंगे। तब फिर मैं उनसे जुड़ी। अब 3 महीने से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि वीविंग का जो काम है मैं खुद करती हूँ, पूरा जो प्लास्टिक कलेक्ट करना है, उसको कटिंग करना है, वीविंग करना है, वीविंग में कौन सा डिजाइन करना है, कौन सा कलर लेना है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। लेकिन उनका सिलाई का काम जो है वो नीलेश भाई अहमदाबाद में करते हैं। फिर उसको मार्केटिंग में कैसे लेके जाना है वो भी मुझे नहीं पता था। तो अभी वो एग्जीबिशन में हमको लेके जाते हैं और नया नया प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो उनका अच्छा प्रोडक्ट भी है और एक नई चीज़ भी बना रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है और उनको मार्केटिंग भी अच्छा देके ले रहे हैं। वो बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी हमको लेके जाते हैं, वहाँ पे अच्छा दाम भी मिलता है। तो अभी हम वहाँ तक ये काम कर रहे हैं। मैं आगे फिर थोड़ा बताऊंगी। Okay, thank you, Raji Ben. So she decided to go on her own and try to, you know, actually look at an entrepreneurial journey for herself. And in this period of time, she met a person called Nilesh, who runs an initiative called Karigar Clinic, who basically gave her the opportunity to start weaving on her own, you know, and helping her with product development and access to market. So what she basically does is she does all the process up till creating the weaving
टेक्सटाइल। एक मिनट राजी बहन, आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा जो आप अभी दिखा सकते हो जब मैं बात कर रही हूँ? हाँ दिखा सकती हूँ। हाँ, so she'll show you what we're talking about, so you'll get a better idea. So she basically makes the base fabric, which is with recycled plastic. Nilesh, who's helping her out, takes these plastic sheets to Ahmedabad and produces the products there, and then also helps her with all the marketing. He's the one who has now set up a brand for her, which they call Raji Ben, so it's by her name, and has started also taking her for some exhibitions in different cities, and apparently she says she's getting good value of for her products and her craft, so she's happy. राजी बहन, आप खुश हैं ना? हाँ बहुत खुश है। चलो ठीक है, तो हाँ इसके आगे बताइए। राजी बहन, अभी ये महामारी का माहौल है और आपने अभी शुरू किया है 4-5 महीने में, तो आप अपने सामने क्या परिस्थिति देख रही है? आप अपने फ्यूचर को क्या देख रही है? परिस्थिति देखा जाए तो अभी बहुत गंभीरता है। जैसे हम वही सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। अभी हम खुद का काम तो करना शुरू किया था, लेकिन अभी 3 से 4 महीना ही हुआ है मैंने शुरू किया, और शायद वो हमारी किस्मत का थोड़ा वो समझे कि शुरू करने से आगे बढ़ने से पहले ही बीच में बड़ा गैप आ गया है। तो हम क्या करें, अभी तो लॉकडाउन में है, अभी 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन का हो गया है, तो हमारे पास जो भी मटेरियल थोड़ा बहुत था उसमें से हम अभी तक काम कर रहे थे, 1 महीने तक चला। लेकिन अभी क्योंकि मटेरियल हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग है सोसाइटी में, स्कूलों में, ऐसी जगह से हम कलेक्ट करते हैं, तो अभी वो सब बंद है, बाहर तो नहीं जा सकती है। तो अभी हम वैसे ही बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्लास्टिक है उसमें हम कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं अभी, क्योंकि प्लास्टिक नहीं। लेकिन उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अभी बाहर तो लगभग बाहर, जैसे हमारा माल है पूरा विदेश में ज्यादातर जाता है, हमारे इंडिया से लेकर ज्यादातर बाहर जाता है, तो वो बाहर से आना जाना तो लगभग लंबा टाइम तक बंद रहेगा, वैसा लग रहा है अभी। उसके लिए हम क्या किया जाए, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी अगर इधर ही कहीं हम बेच सके, थोड़ा ऐसा छोटी छोटी चीज बना के हमारे इंडिया में ही कहीं, तो अगर इसमें कोई हमारी ऐसी हेल्प हो सके तो वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इधर ही बेचे, ना के बाहर। बहुत निकल सकता है तो हमारे लिए अच्छा है। आपके साथ अभी कितनी बहनें जुड़ी हुई है इसमें? अभी सब मेरे साथ 7-8 बहनें जुड़ी हुई है ज्यादातर, अभी ज्यादा नहीं जुड़ना चाहती है और बहनें, लेकिन अब मैं वो सोच भी रही थी, और 5 बहनों को मैंने काम अभी लगभग 15 दिन पहले ही दिया था, लेकिन अभी वो लॉकडाउन की वजह से फिर से मैंने बंद कर दिया, अभी मेरे पास भी नहीं है तो बंद हो गया है। लेकिन बट अभी लॉकडाउन खुलेगा और मार्केट का आपको रिस्पांस मिलेगा तो ये बहनों को आप अपने साथ जुड़े रखेंगे? हाँ जुड़े रखेंगे, वैसे भी वो आ रही है तो हम कुछ नया कर रहे हैं, जो फूल बनाते हैं, कभी कभी चोटी बनाते हैं, ऐसा काम हम करते हैं। जो हमारे पास पॉलीथीन बैग जो आता है रोज 4-5 थैलियाँ आती है, तो वो हम बैठ के ऐसा काम करते हैं अपने अपने घर में जाके, ज्यादातर एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कभी कभी हम वो 1-2 बहन को बुला के ऐसे नया कुछ सिखाते हैं वीविंग के अलावा, और तो उसमें ज्यादा प्लास्टिक नहीं चाहिए, अभी वो चालू है हमारा काम। Great. Ghatit, I think we have to move to the other weavers. थोड़ा सा time check भी करना होगा. So let's move to the next one. Short announcement to the audience. Thank you for being around. We may just extend this a little bit more beyond 5:30. We are not losing time, but we are spending time on the translations, which is also important. So I hope you will be patient enough to stay with us a little longer. Yes, Ashish? Juhi, you might want to ask, do people need translation or is everybody okay with Hindi? I did, but okay, let me ask again. Does anybody need translation in English, or Hindi is okay if all of us are speaking Hindi? If somebody needs it, they can maybe just unmute the mic and tell us now. Yeah. So should we take it that everybody understands Hindi here in this forum? Okay, perfect. One person said Hindi is good on the chat. Perfect. No need for translation from most. So let's just go ahead. Wow. Thank you so much, all of you. Thank you. Yeah. So, and if some people have started putting questions in the chat, if anybody else wants to put their questions, I'm keeping track of it. Yeah, we are keeping track of it as well. हमारे जो नेक्स्ट वीवर है वो अरुण है. Thank you, Raji Ben.
थैंक यू राजीबेन, शुक्रिया। તમારું માઇક ઓન કરો રાજીબેન. Yeah. Okay, next. Yes. Okay, Rajiben. Thank you. Abar. Okay. So, okay, Rajiben is very happy and optimistic, although she is in the lockdown, but she feels that she will find a way. Yeah. She's showing her products. Yeah. Very she's showing her nice. product. Very nice. Thank you. Thank you, Rajiben. Yeah. तो हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट है वो अरुण है। अरुण का नेटिव विलेज कोटाई है, वो अभी रुद्र माता में रहते हैं और अपने पूरे परिवार, उनके फादर है वो नेशनल अवार्ड विनर है और जैसे पता है वो कच्छ वीवर एसोसिएशन के अभी के प्रेसिडेंट है। और अरुण भाई, आपका जर्नी कैसा रहा, हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, थोड़ा टूकाण में बात करीशू। और आपका लॉकडाउन का समय आपने कैसे बिताया, अभी फ्यूचर में आपको क्या मुद्दे लग रहे हैं, वो सब आपसे हम जानना चाहते हैं। यस अरुण जी, नमस्ते। नमस्ते अरुण जी। तो सबसे पहले कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीविंग जो है वो हमारा ट्रेडिशन है, वंश परंपरागत का काम है और पापा के जरिए मैंने सीखा है। और we've lost him, Arun. Yeah, it looks like. एक मिनट थोड़ी देर रुक सकते हैं, कनेक्ट हो जाएगा। ओके अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसके ही दो जो साथीदार हाँ, है अरुण के हमारे साथ है, विनोद और मनसुख। मैं लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें उनको बताना चाहता हूँ कि ये यंग वीवर्स ने साथ में मिलके कलोरी करके ग्रुप बनाया है। इसमें जो भी डिजाइन स्कूल है, जिसमें द हैंडलूम स्कूल, कला रक्षा विद्यालय, उस सब में से जो पढ़े हुए यंग वीवर्स 5-6 वीवर्स साथ में आए और उन्होंने ये ग्रुप बनाया है। तो अरुण वापिस आ गए हैं, तो हम अरुण को बोलते हैं कि अपनी बात को शुरू रखे। यस अरुण। जी सर। तो जैसे कि मैंने बताया कि वीविंग जो है हमारा वंश परंपरागत काम है और पापा के जरिए मैंने सीखा है। और उसके बाद मैंने दी हैंडलूम स्कूल में आर्टिजन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, वहाँ पे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। पहले उससे जब मैंने ये ग्रेजुएशन कोर्स किया, उससे पहले हम जो हमारे काम था, हमारा जो पुराना जो ट्रेडिशन था उसके साथ ही ज़्यादातर काम करते थे। मगर बाद में वहाँ जाने के बाद मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला एज ए डिज़ाइनिंग और साथ में कलर कॉम्बिनेशन और क्या हम नया कर सकते हैं कच्छ के काम के साथ वहाँ का काम का। तो मैंने कुछ पीसेस बनाए फिर और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ग्रेट। अरुण, आपके साथ अभी विनोद और मनसुख भी हैं और आप लोगों ने एक कलोरी ग्रुप के शुरू किया कलेक्टिव साथ में। तो विनोद, मनसुख, आप भी सुन रहे हो तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि ये कैसे हुआ और ये क्यों आप लोगों ने कलेक्टिवली कलोरी का मतलब भी बताइएगा। कलोरी का मतलब क्या है वो भी बताइएगा। नमस्कार। ओके, पहले तो मैं ये कलोरी का मतलब बताना चाहता हूँ। कलोरी एक जैसे कि हमारा वर्क होता है उसे हम साइजिंग करते हैं, जैसे कि काला कॉटन को मतलब साइजिंग करना जरूर होता है, तो उसे हम साइजिंग करते हैं। तो उसके जो मतलब उस पे हम एक तरह का ब्रश आता है कलोरी, तो उससे हम कलोरी बोलते हैं। एक तरह का ब्रश मैं आपको दिखाऊंगा बाद में।
तो उसका रीजन ये है कि कलोरी जैसे सब एक एक लकड़ियां उसमें जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग ऐसा सोचा था कि सब लोग हम लोग कलोरी ग्रुप में 5 मेंबर हैं, तो हमने ये सोचा था कि सब लोग एकजुट होके कैसे रह सकते हैं और अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस, नाइस नाइस, गुड। और अभी इस जैसे घटित भाई का सबसे प्रश्न है, इस लॉकडाउन को लेके, इस क्राइसिस को लेके आप लोगों का क्या सोच विचार है कि क्या होगा या फ्यूचर में, या अभी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप लोग साथ में? अरुण जी, तो अभी तक तो जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ तब तक तो काम ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वैसे ही जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, तो उनका भी मतलब जो काम था वो रुक गया। जैसा कि अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है लॉकडाउन को, तो अभी तक हमारे पास जो भी यान था, जो भी धागा था, उससे हमारा काम चल रहा था और हम थोड़े बहुत जो भी ऑर्डर्स थे वो काम कर रहे थे। मगर अभी पिछले 1 महीने के बाद फिर कुछ भी काम नहीं आया है और जो हमारे पास धागा था वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने जा रहा है। जो भी ऑर्डर्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और कुछ ऑर्डर्स आए भी थे, मगर वो लॉकडाउन की वजह से हमें जो यान कलेक्ट करना पड़ता है और जो डाइंग की प्रोसेस होती है उसमें सब अटक गया है काम। तो लॉकडाउन जो भी हमारा काम था वो रुक गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन की यंग वीवर्स जो है, आपके जैसे युवा वनकर है, उन पे क्या असर होगी? क्योंकि कच्छ में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे यंग वीवर ने अभी अभी वीविंग नए सिरे से पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में शुरू किया है, तो उन पे क्या असर होने वाली है? मनसुख और विनोद, आप भी बोल सकते हैं। जी सर, मेरे गांव में तकरीबन ज्यादातर यंग लोग ही वीव करते हैं। तो मैं जितना भी अभी मेरे गांव में देख पा रहा हूँ यंग लोगों को, मतलब थोड़ा शायद जैसा कि मतलब थोड़ा सा नाराज तो हो गए कि मतलब सोच रहे हैं कि अब मतलब मार्केट अच्छा नहीं मिलेगा। एक या 1.5 साल पहले साल तक कोई एक दिन से नहीं होगा, मार्केट में थोड़ा बहुत मंदी भी आएगी, ये सब मैं पा रहा हूँ। अभी नए वाला नजरिया दिखाई दे रहा है सर में। तो अरुण भाई, ये सब हालात में रास्ता क्या होगा? क्या लोगों को करना चाहिए, ऐसा है आपके हिसाब से? जी सर, अभी तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और कब खत्म होगा उसका कुछ पता नहीं है। तो अभी के हिसाब से हम जैसे ज़्यादातर वूल का मटेरियल बनाते थे, वूल की शॉल्स हैं, वूल के स्टॉल्स हैं। तो अभी मैं सोच रही कि अगर कॉटन के हम बनाने चाहें तो कॉटन में प्रोडक्शन कर सकते हैं थोड़ा बहुत और कुछ नए डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं, ताकि हम नए डिज़ाइन में हमें टाइम भी ज़्यादा लगे और हम कॉटन का है तो 1 आध साल तक हम रख भी सकते हैं उसे, वो कुछ खराब भी नहीं हो सकता है। तो हम अभी जस्ट सोच ही रहे थे, हमारा पूरा ग्रुप जैसे हम अभी जुड़े हुए हैं वैसे हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े थे और ऐसी बात हुई थी कि आगे हम अभी कॉटन है या फिर जो कच्छ का काला कॉटन है, जो यान हमारे पास हैं, उसके साथ कुछ नए डिज़ाइन और नई टेक्निक और नए कलर कॉम्बिनेशन से कुछ नए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो बात थी मेरी। ओके, शुक्रिया, थैंक यू अरुण, विनोद, मनसुख, शुक्रिया। हमारे साथ जो काला कॉटन की बात हुई है, तो सरली से सुरेश भाई है और उनकी बहन कृष्णा है। और सुरेश भाई का परिवार काला कॉटन के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ है। उनके फादर पर्वत भाई वो एक बहुत ही अच्छे वीवर है और गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। तो सुरेश भाई, आपको अभी काला कॉटन का और उसका क्या फ्यूचर दिख रहा है? पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप और कृष्णा बहन, एंड देन काला कॉटन के बारे में भी बात कीजिए प्लीज।
मेरा नाम मनकर सुरेश पर्वत है। मैं सरली से हूँ। भुज से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। ओके। तो पहले तो मैं हमारा ट्रेडिशनल जो काम था वो शॉल बनाते थे। हाँ, फिर उसके बाद हम खमीर से जुड़े। फिर 12 साल हमने उनके साथ काम किया, खमीर के साथ फैब्रिक बनाया, काला कॉटन। वो काला कॉटन है वो ऑर्गेनिक है और वो कच्छ में ही उसका खेती होता है और कच्छ में ही पूरा उसका प्रोसेस पूरा कच्छ में ही है और कंप्लीट जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो इधर ही खमीर में ही होता है। तो वो अच्छा है, उसमें कुछ भी पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है और ऑर्गेनिक है। ये उसका खेती भी पूरा ऑर्गेनिक है, जो वीवर को भी एक काम मिल सके और खेडूत को भी काम मिल सके और वो कटाई करती हैं काला कॉटन को, उन्हीं को भी वो पूरा अच्छा काम है बहुत खमीर का। और अभी मैं फिर उसके बाद में 2016 में मैं सोमाया कला विद्यालय गया। फिर उधर मैं डिजाइन कोर्स किया 1 साल के लिए 2016 में। तो उधर मुझे पता चला कि कौन से मार्केट के लिए माल बनाना है, क्या मटेरियल यूज करना है, कैसे एग्जीबिशन में हम किस मार्केट के लिए बनाना है, कौन सा सबको देख के हमको काम करना है। और उधर सोमाया कला विद्यालय में मैं गया तो बहुत मुझे फर्क आया। उधर सब 1-1 महीने का क्लास होता है, कलर क्लास होता है, डिजाइन क्लास होता है, मार्केट का होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थीम के ऊपर हमको काम करना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको उपयोग भी किया। तो आज बहुत अच्छा है, लग रहा है मुझे। और उन्हीं को जो वहाँ मैं सीखा हूँ वो मैं सब प्रोडक्ट में ला रहा हूँ। वो सब आपके साथ जो कृष्णा बेन है वो भी वहाँ पे स्टूडेंट रही है, उन्होंने भी सीखा है? हाँ, वो भी सीखा है कृष्णा बेन। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है और मैं सारेगाम से हूँ और मैंने 2018 में ये क्लास किया था सोम्या कला विद्यालय में। फर्स्ट मेरा भाई गया था तो वो जब होमवर्क में करने घर पे आता था तो उसमें कुछ नया कुछ इंक्लूड करता था। तो मुझे भी ऐसे वीविंग में कुछ नया करने को मौका मिला था। तो उसी लास्ट ईयर 1 साल के बाद वो 2018 में लड़कियों का लास्ट हुआ था। तो इसमें मैं इंटरव्यू देने गई थी और उसके बाद मैं इंटरव्यू में पास हो गई थी और वहाँ पे 1 साल पूरा कोर्स किया था। तो वहाँ पे ऐसा होता है कलर का, डिजाइन का, मार्केट का पूरा एक पूरा सीखने को होता है। तो उसमें कलर कैसे बनते हैं, उसके बाद डिजाइन के बारे में हम अपने प्रोडक्ट में कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, वैसे सब होता है। तो वो सब जो हम अपने पहले तो मैं पूरा का जो शॉल और फैब्रिक काला कॉटन का जो वीव होता है वही करती थी प्लान में जो होता है। और मुझे लगा कि मैं अपने कुछ काम में कुछ नया करूँ तो वहाँ से जो लेआउट्स और वो सब होते हैं तो वो मैंने प्रोडक्ट में लाए और कुछ नया बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लास होता है, इसमें पूरा थीम चूज करना होता है। तो वैसे जैसे हम अपने काम में जो कॉन्सेप्ट कैसे अपने काम में यूज कर सकते हैं, तो जैसे एक मोटिव में से हम दूसरे अलग अलग डिजाइन और प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो सबको हमने सीखने को मिला वहाँ पे। ओके, तो ये जो आपने सीखा वो आपने अपने काम में कैसे लाए बाद में, उसमें से आपको जैसे पे मैंने एक कॉन्सेप्ट का एक थीम चूज किया था। सिटी लाइफ, मतलब कि शहर के ऊपर होता है। तो सिटी लाइफ के मैंने पूरा एक दुपट्टा बनाया था, जैसे इसमें बिल्डिंग्स वो सब होते हैं जैसे बताया है इसमें। और पूरा मल्टी कलर का चूज किया है, जैसे हम जब शहर में जाते हैं तो पूरा मल्टी कलर का जैसे सब कलर हमको दिखने को मिलते हैं वैसा बनाया है। Very nice. Beautiful. Okay, beautiful. Great, thank you. So
तो अभी आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो लॉकडाउन में भी कुछ डिजाइन बनाना, कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ जी, अभी हम स्टॉल मैंने नया कुछ बनाया है, काला कॉटन में ऑर्गेनिक में बनाया है कुछ नई डिजाइन। अभी थोड़ा लॉकडाउन में काम धीमे धीमे चल रहा है ना, तो थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए कुछ नया करें तो वो भी वक्त मिल रहा है थोड़ा ऐसे। ग्रेट, दैट्स गुड। और लॉकडाउन आपको खुशी मिली? लॉकडाउन में कुछ नया करने का टाइम मिला कि क्या हुआ? वैसे तो एक्चुअली नया बनाते हैं हम। हाँ। हाँ, तो लेकिन अभी थोड़ा स्लो और कुछ नया धीमे धीमे, मतलब स्लो बहुत अच्छा नया डिजाइन में करने को मिलता है, टाइम थोड़ा मिलता है ऐसे। ओके ओके ओके, सुरेश भाई, कृष्णा बहन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। या हमारे जो दूसरे सुरेश भाई हैं वो आधोई से बिलोंग करते हैं, और आधोई ईस्ट कच्छ का क्लस्टर है, वो बहुत काफी बड़ा क्लस्टर है, और वो अपने तांगलिया वीविंग के लिए जाना जाता है। तो हम सुरेश भाई वनकर से अभी उनकी बात सुनेंगे। सुरेश भाई, आधोई थी। सुरेश भाई अपना माइक पहले अनम्यूट करके आप। हाँ। नमस्ते नमस्ते सुरेश। हाँ जी, आज आ रही है। यस सुरेश, आप आधोई के बारे में, अपनी तांगलिया परंपरा के बारे में, तांगलिया वीविंग की परंपरा के बारे में, आपने जो भी डिजाइन एजुकेशन लिया है उसके बारे में भी आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश वनकर है, मैं आधोई से हूँ। भुज से पहले हमारा 80 किलोमीटर आगे गांव है, वहां से हूँ मैं। और ये टांगलिया वीविंग और एक्स्ट्रा वेयर हमारा परंपरागत काम है जो हम पहले से ही करते आ रहे। मैं वीविंग बीच में छोड़ दिया था मैंने 2010 में। मैं तब वेलस्पन कंपनी है हमारे कच्छ में ही, अंजार के बाजू में, वहां पे मैंने जॉब किया था। वहां पे मैंने 2 साल जॉब किया था। फिर वहां मुझे इनकम कम थी, तो उसके बाद मैंने ये काम छोड़ दिया था। फिर मैंने यो बाइक करके हमारी सामख्याली है, उसके बाजू में कंपनी, 1 साल वहां पे मैंने जॉब किया। फिर मैंने उस टाइम पे न्यूज़पेपर में एक कला रक्षा का एड आया था, तो फिर मैं 2013 में, शायद 2012 के एंडिंग में मैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गया। तो वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया टांगलिया काम के लिए। तो फिर मैंने 1 साल का वहां पे क्लास किया कला रक्षा विद्यालय में, जहाँ पे जूडी फेटर करके जो मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। फिर डाया भाई कुंडी चाहे भुजुड़ी में, वो भी एक टीचिंग करते थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। फिर उस टाइम पे मैंने 1 साल का जो काम किया, वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम सीखने को मिला। फिर कलर के बारे में भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम जो पहले काम करते थे भरवाड़ समाज के लिए, वहाँ पे ज़्यादातर हम काम जो वार्म कलर है, जैसे रेड है, येलो है, रेड कलर है, ब्लैक है और वाइट है, उसी 5 कलर पे हम ज़्यादातर काम करते थे। तो फिर कला रक्षा में मैंने जो 1 साल का पढ़ाई किया, वहाँ पे मुझे ज़्यादातर सीखने को मिला। कलर स्टोरी के बारे में भी मुझे बहुत आइडिया मिला। फिर मैंने एक थीम पे वहाँ पे काम किया था, जूनू एटलू सोनू, मतलब जो पुराना है वही सोना है। जो मेरा जो टांगलिया का काम था पुराना, इस पे ज़्यादातर काम किया। जो फिर मैंने तो अभी तांगलिया में कितने वीवर जुड़े हुए हैं तांगलिया काम में? अभी हमारे गांव में पहले हमारा परिवार ही काम करता था, उसके बाद अभी खमीर के साथ जुड़े, उसके बाद अभी ज्यादातर 25 के करीब लोग काम कर रहे हैं टांगलिया पे। और हाँ आगे बताइए। हाँ, फिर खमीर संस्था में जुड़ा, उसमें मैंने ये नया काला कॉटन है जो कच्छ का ही धागा है, उस पे मैंने काम स्टार्ट किया। उसमें मुझे भी इतना खुशी मिली काम करने में कि मैं आगे इस काम को मैं ले जाता, मुझे भी टांगलिया को आगे ले जाना, क्योंकि वो एक लुप्त होता जा रहा था। हमारी कला जो सिर्फ भरवाड़ समाज के लिए पहले था, उसको मुझे और भी समाज
और भी लोग खरीदे, उनको पहचाने, उसके लिए मुझे आगे ले जाना था। फिर मैंने चूज किया काला कॉटन, उस पे मैं ज्यादातर काम कर रहा हूँ। वैसे मैं मिल कॉटन में भी करता हूँ, परंतु मुझे खुशी मिलती है ये काला कॉटन है, उसी पे नेचुरल पे ही काम करना, उसमें मुझे ज्यादा सुरेश भाई, हम सब साथ में मिलके इसको आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, ऐसा है। उसके बाद आप अपना क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इसके बाद क्या परिस्थिति आपको लग रही है? अभी तो कोरोना के कारण मैं शायद 27 मार्च को मैं दिल्ली में था, वहां से मैं एक ऑर्डर लेके आया। ये जो जयपुर संस्था है उनका, वो ऑर्डर भी बहुत बड़ा है, मुझे कुछ 200-300 मीटर का पार्ट बनाना। जो मीरा बहन के साथ बात हुई, उन्होंने भी अच्छा सा हेल्प मिला, परंतु ये कोरोना के कारण और मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, उसके कारण रुक गया अभी काम। तो फिर मैं घर पे जो घर पे यान पड़ा है, उसी में जो हम अपना जो मास्टरपीस बना सके, अपना जो मास्टरी दिखा सके, ऐसे ही घर पे अभी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि टाइम के हिसाब से अभी कुछ काम ऑर्डर का नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, तो हम घर पे अभी ऐसा पीस बना रहे हैं जो आगे जाके हम उस नेशनल अवार्ड के लिए या किसी में अप्लाई करना है, या कोई ऐसा बायर भी मिल जाए जो हमें अभी लॉकडाउन में भी जो बना रहे, उनका दाम पूरा 1 महीने में कुछ 38 दिन अभी हो गए, तो उसी में अभी कुछ 25 दिन हो गए पीस बनाने में, तो ऐसा कस्टमर भी मिल जाएगा उसको खरीदने वाला, ऐसे सोच के हम बना रहे घर पे। और ये पीस बनाने में आपको बहुत मजा आ रहा है? नया बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है तो उसमें ज्यादा भी सिर्फ अपना मास्टरी दिखाना है। तो हम, मेरा छोटा भाई है, वो भी हैंडलूम स्कूल में पढ़ाई करके आया, वो भी हेल्प कर रहा है, वो भी अपना मास्टरी दिखा रहा है, घर पे अलग एक पीस बना रहा है। मेरे पापा है, वो भी वूल पे अभी एक अपना जो धाबला है हमारे यहाँ, उस पे वो अपना मास्टरी दिखा रहे। मैं अपना घर पे मैं खुद का एक मास्टरी दिखा रहा हूँ। और जो छोटा एक ऑर्डर है, वो 2 वीवर है मेरे जो साथ काम करते हैं, उनको भी मैंने ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर का काम कर रहे हैं, और घर पे हम अपना एक मास्टरपीस बना रहे हैं। ओके सुरेश भाई, થેન્ક યુ વેરી મચ। તાંગળિયાનો કોઈ પીસ છે તમારી પાસે બતાડવા માટે? હા સર, અત્યારે હું થોડો કામથી બહાર છું, એટલે હું અત્યારે બતાવી શકું નથી। કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો બતાવીશ જરૂર। કઈ વાંધો। ओके सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो अशोक भाई है। अशोक भाई सीजू, वो भुजोड़ी से बिलोंग करते हैं, और भुजोड़ी का जो वीविंग का जो मेन जो सेंटर है कच्छ का, उसके जो मेन फैमिली है वनकर विश्राम वालजी। अशोक भाई वो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। हम अशोक भाई को आमंत्रण देते हैं कि आए और अपने बात करें। अशोक भाई नेचुरल डाइंग और इंडिगो डाइंग में मास्टरी रखते हैं, तो उन्होंने ये सीखने की शुरुआत कैसे की और कैसे ये परंपरा को आगे ले गए। अशोक भाई। नमस्ते सब लोगों को। हमारा दादाजी ट्रेडिशनल तो वीविंग का रहा है पहले से ही, पर मेरे इंटरेस्ट में थोड़ा पिछले 5-6 साल में चेंज हो गया। हमें जब 12th जब हमने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हमें काम में ही और किसी काम में नहीं जाना था, हमको घर के ही ये ट्रेडिशनल वीविंग के ही काम में आना था। तो वैसे ही हमने शुरुआत से ही शुरुआत की कि हम सब काम करते थे पहले, कि जैसे जो सब कुछ काम होता है, डाइंग या वीवर से मिलना या मतलब सब कुछ काम। तो 2 साल हमने वैसे ही ऐसे जैसे सब लोग काम करते हैं वैसे घर में ही हमने काम किया। और उसके बाद एक हमारे अंकल हैं दिनेश भाई, तो उन्होंने मुझे बहुत ही फोर्स किया कि आप है ना, आप नेचुरल डाइस कीजिए और उसमें भी इंडिगो कीजिए। तो वो पहले 2 साल हमने बहुत फोर्सफुली किया। मैं जबरदस्ती हम करते थे इंडिगो की, मजा नहीं आता।
तो भी हमको जबरदस्ती किया 2 साल। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा दिनेश भाई शायद सुन रहे होंगे ऐसे। हाँ हाँ अशोक भाई। पर फिर धीरे धीरे वो ये दिनेश भाई इंडिगो है या नहीं, ये श्यामजी भाई है। नहीं ये दिनेश भाई है। दिनेश है, दिनेश भाई है। ओह वाह, वो फोर्स करने वाले दिनेश भाई यही है ऐसा। ओके यस अशोक भाई। हाँ तो फिर धीरे धीरे हमको इंडिगो और समझ आने लगा, बहुत थोड़ा बहुत धीरे धीरे, कि इतना दिनेश भाई को और घर में भी इतना नॉलेज था सब लोगों को, मुझे नहीं था। फिर भी बहुत स्ट्रगल, उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगा। कि अभी भी हमें कभी वो समझ नहीं आता हमको इंडिगो, कि वो क्या कर रहा है, वो आज ऐसा क्यों है कि नहीं, हमें समझ नहीं आता अभी भी। मैं तो फिर भी अभी भी सीख रहा हूँ। वो आपने कहाँ से सीखा अशोक भाई? आप सीखने के लिए कहाँ पे गए? ऐसा है कि हम वीवर्स ट्रेडिशनल में सिर्फ नेचुरल डाइस भी अगर बात करें तो सिर्फ पहले 3 कलर्स थे, कि एक था नेचुरल वाइट फाइबर का जो वुल और कॉटन का वाइट कलर, और एक था लाख का रेड कलर वीवर्स ट्रेडिशनल में, और एक ब्लैक करते थे वो अकेशिया से, जो देसी बावड़ की पत्तों से और उसके फ्रूट से, छाल से ब्राउन छाल से। हाँ, तो हमारे वीवर्स ट्रेडिशनल में कभी भी ये ब्लू कलर था ही नहीं पहले से। अगर नेचुरल डाइस की बात करें तो ये खत्री लोगों का ट्रेडिशनल है इंडिगो, जो हम अभी सीख रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे परिवार ने शुरुआत किया, तो अभी 25 से 26 साल हो गए हैं, पर अभी भी सब लोग सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कभी कभी वो समझ नहीं आता किसी को भी कि वो क्या हो रहा है। तो अभी आप आता तो मैं पिछले 6-7 साल से इसी के काम के साथ हूँ, नेचुरल डाइस के साथ। हाँ, आप सिर्फ डाइंग करते हैं कि उसके आगे की प्रोसेसेस भी करते हैं? इंडिगो डाई एक्सट्रैक्शन या ऐसा कुछ करते हैं? अभी एक नई हमने ट्राई किया है, हम उसमें क्या है कि हम इंडिगो साउथ से लेते हैं, साउथ इंडिया से इंडिगो पाउडर या इंडिगो हम केक लेते हैं, फिर उसको हम डाई करेंगे। पर हमने अभी कोशिश किया है थोड़ा बहुत कि हमने ग्रो किया था इंडिगो प्लांट्स कच्छ में, कि फिर उसमें से हमने ट्राई भी किया, इंडिगो एक्सट्रैक्ट किया, पर वो थोड़ा एकदम ब्लू नहीं है, वो थोड़ा ब्लैकिश ग्रीनिश जैसा लग रहा था। कि पर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम प्लांट से लेके पूरा डाइंग हो रहा है वो हम कभी ना कभी हम लोग पूरा कर लेंगे उस प्रोसेस को, कि इंडिगो ग्रो से 3 से 4 महीना उसको ग्रो लगता है। फिर एक बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है, उसके प्लांट के पत्तों में से इंडिगो एक्सट्रैक्ट करना। वो सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि वो लोग कैसे करते हैं। तो फिर उसको फर्मेंटेशन करके उसको डाई करना है, तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है कि अभी भी मुश्किल है उसको समझना, पर धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अशोक भाई, आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताइए कि आगे ये लॉकडाउन खुले और उसके बाद की प्रक्रिया में आगे आप कैसे परिस्थितियों के सामने डील करने वाले हैं, क्योंकि आपका परिवार है वो बहुत सारे व्यूअर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता है, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी फिलहाल
ऐसा मौका है सब लोगों के पास कि नए नए सोचना, सब लोग नया नया सोच रहे हैं कि और जो कुछ ऐसा एक मौका है सभी लोगों के लिए कि वो नया क्या सोच सकते हैं कि ये खुलेगा तब हम क्या करेंगे। तो हाँ, तो वीवर्स सभी लोग पे इसका असर तो पड़ा पे कि We've lost him. कि कच्चा माल तो जोड़ी में इश्यूज है। अशोक आपको फिर से रिपीट करना होगा, लास्ट हमको नहीं समझ आया। हेलो, अभी कनेक्टिविटी के इश्यूज। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब बोलो। यस अशोक। हाँ, तो अभी सभी के लिए मुश्किल है ये टाइम, पर ऐसा लगता है कि जो काम करते हैं फिर वो सेल करते हैं, फिर उसी में से वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सभी वीवर्स। तो अभी ना ही सेल हो रहा है, ना ही रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगे देंगे, तो सभी के लिए मुश्किल है। पर सभी लोग सोच रहे हैं कि अब जैसे ही ये खुलेगा तो हम सीधा ही गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचा होगा टेक्सटाइल से ही हम सीधा वीवर से लोगों को मिला एग्जीबिशंस करे, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा सभी के साथ। वाह वाह, ओके। हम ये ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ ही ये एंड करते हैं। जैसे अशोक भाई ने कहा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये कच्छी आर्टिजनशिप की ये स्पिरिट है कि कोई घोर निराशा के समय में भी वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू जूही बेन। थैंक यू घटित। पहले तो थैंक यू सुरेश, दोनों सुरेश, कृष्णा बेन, राजीव बेन, अशोक भाई, अरुण, विनोद, मनसुख, परेश भाई, घटित। बट कुछ सवाल आए हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैं ये सवाल अकॉर्डिंगली करती हूँ क्योंकि आई थिंक ये कोई भी आंसर कर सकता है। ये मैं सवाल एक्चुअली परेश भाई को पूछूंगी। इट इज अबाउट मटेरियल। तो जयदीप एक्चुअली कॉल से निकल गए, लेकिन उनका सवाल इंटरेस्टिंग है कि ये जो मटेरियल हमारा लोकल वुल है, क्या लोगों ने अब उसको completely एक्रेलिक और मेरिनो से रिप्लेस कर दिया है या लोकल वुल अभी भी है मार्केट में? देखिए जूही बहन, एक चीज मैं बताना चाहूँगा। रिसेंटली 2 साल से हम लोग जो कच्छ का लोकल शीप वूल है उसको एक नया तरीके से मार्केट में लाने की एक प्रयास कर रहे हैं। और शायद एक नया शायद अभी तो ये लॉकडाउन हो गया, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो लोकल देसी वूल का एक भविष्य जो है वो उजड़ा है। काला कॉटन की तरह वो शायद इतना चार्मिंग ना हो, बढ़े ना, लेकिन एक मार्केट बहुत अच्छे से खुलेगा कि जो लोग, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको सॉफ्ट चाहिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा रफ फील वाले प्रोडक्ट भी चाहिए। और उसमें शायद लोग चाहते हैं कि हैंड स्पिनिंग अगर लोकल वूल अगर उन्हें मिलता है तो दैट वन इज ए गुड। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर एक्रेलिक भी है उसका भी एक मार्केट है, क्योंकि अगर जो लोग सस्ता खरीदने वाले जो लोग हैं वो शायद एक्रेलिक खरीदेंगे, लेकिन वुल शायद बढ़ेगा और आगे अभी। ग्रेट, थैंक यू परेश भाई। फिर एक और क्वेश्चन था एंड परेश भाई आप ही आंसर कर सकते हो, ज्योत्सना अय्यर से। शी इज सेइंग आई वुड लाइक to know how much money we pay for these products like a stole that goes to the weaver. कैसे आप रॉ मटेरियल, आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज रॉ मटेरियल और वीविंग कॉस्ट आप लोग कैसे डिसाइड करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए? देखिए जहाँ तक मैं कच्छ वीव की बात करूँ, कच्छ में जो आज जो चेंज आया है, यहाँ पे हमारे साथ मीरा बेन, दुर्गा बेन भी जुड़े हुए हैं। जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। शायद काला कॉटन की मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ वीविंग सेक्टर में कच्छ में। शायद मैं बोलूँ कि जो लोग काम करते थे एक्रेलिक को लेके, वो आज धीरे धीरे पूरा
कवर्ड हो गए हैं, जो टर्न हुए हैं वो सब काला कॉटन में टर्न हुए हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे उसका मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ा है। अब प्राइस जहाँ पे है कि जहाँ की आप वेजेस की बात कर रहे हैं, शायद मैं ये समझ रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ अलग अलग जगह में जहाँ ट्रैवल किया हूँ, साउथ इंडिया में मैं गया कुछ राजस्थान और वहां में गया, तो कच्छ में जो वीवरों को या फिर जो भी आर्टिसन है जो उनको वेजेस मिल रहे हैं, दैट मीन इज अ वेरी गुड वेजेस, बहुत अच्छे वेजेस जिनको मिल रहे हैं, जिस वजह से जो यंग आर्टिसन है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जितने सारे लोग हैं तो सबके सब यंग हैं, किसी के सिर में सफेद बाल नहीं है, सबके सब काले बाल वाले सब यंग आर्टिसन जो काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई वो जुड़े हुए हैं। और शायद मुझे कॉस्टिंग लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत फेयर वेजेस की वजह से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और ये काम बढ़ेगा। हाँ, कुछ सवाल हैं, शायद सब लोगों ने बात की, लेकिन एक चीज शायद उसमें बात नहीं आई कि जो मार्केट है आफ्टर द लॉकडाउन ओपन, कि उसमें क्या ऐसी चीजें होंगी जो सबसे पहले जरूरी चीजें करनी होंगी हमें, क्या लॉन्ग टर्म जो पूरे लंबे साल 2 साल के लिए हमें सोचना होगा, वो क्या चीजें होंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लोकल मार्केट हमें फिर से स्टैब्लिश करनी होगी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे भी पता नहीं है कि मार्केट खुलने के बाद कैसा चलेगा, क्या उसका स्वरूप होगा, चाहे शायद वो एज इट इज होगा या फिर वी डोंट नो, टोटली हम लॉस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जितने भी वीवरों के साथ हम बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत सारे आर्टिसन के साथ डेली हम लोग बात करते हैं, आर्टिसन सब अपने घर पे काम कर रहे हैं, खुश हैं आज की डेट में। लेकिन 1 महीने के बाद एक्चुअल में शायद कुछ ईमेल भी आ रहे हैं, लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल, हमारा अभी नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट अक्टूबर में हमारा ऑर्डर चाहिए होगा। तो ये शायद चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे शायद सारे क्राफ्ट के लिए। Okay. Okay. Yeah. Thank you. Actually, Ashish, I think Durga and Meera are both not on the call anymore. लेकिन ये एक सवाल है from Alisha Jain, which is मैं चाहूंगी कि हमारे वीवर ग्रुप में से कोई इसका आंसर दे, क्योंकि दैट्स द बेस्ट। अलीशा जैन हमें पूछ रही है कि जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको टिकाए रखने के लिए हमें क्या चीजें करनी होंगी एज अ होल। तो आप लोग, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है वीविंग को ही लेके कि क्या चीजें करनी होंगी ताकि हम इसे टिकाए रखें लॉकडाउन के बाद भी, और ये हमारी जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो चलती रहे, जितना अभी चल रही है इससे ज्यादा ही बढ़े। कोई भी आंसर कर सकता है इसको। जूही, इसके साथ में मुझे लगता है संगीता ने जो अभी सवाल उठाया है कि अच्छा। लोकल मार्केट से किस तरह का सपोर्ट चाहिए हाँ। होगा अगर इसको थोड़ा और मतलब सारी जो वस्तु है वो बाहर ना जाए लेकिन लोकली भी बेच पाए, तो उसके लिए लोकल मार्केट या लोकल सपोर्ट किस तरह का चाहिए होगा। घटित, परेश आप भी आंसर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं सच में आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। Let Paresh answer, and also Prakash is in I was group. just thinking of Prakash. हाँ। Yeah, Prakash भी उसमें कुछ ऐड करे, ऐसा प्रकाश सीजू। प्रकाश सीजू सुन रहा है, लेकिन परेश भाई चलिए आप बताइए, क्योंकि हमें वक्त भी देखना है। We should try and end by about 6 o'clock. जैसे उन्होंने पूछा है कि लोकल मार्केट, ये जो मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सारी क्राफ्ट में अगर आप देखो आप तो एक ऐसा क्राफ्ट है पोट्री, कुंभार एक ऐसा क्राफ्ट है जो आज सबसे ज्यादा अपना सामान लोकली बेचता है ना। बाकी सब हम सारे लोग जो भी हैं, शायद प्रिंटर भी हैं, टाई डाई की आर्टिजन हैं, और सारे जो लोग हैं, हम कहीं ना कहीं अर्बन मार्केट या फिर फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। हम लोग समझते हैं कि इसको तो अच्छा हम फॉरेन में बेचेंगे तभी हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोकल मार्केट में जैसे कि ब्लॉक प्रिंट है, बांधनी है, बाजिक प्रिंट है, पॉटरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, लेकर की कुछ चीजें हैं जो डेली यूज के लिए यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शायद एक
भाव आएगा कि लोकली लोग उसको अगर चाहे तो वो खरीद सकें। शायद आर्टिजनों को उनको एक बहुत अच्छा प्राइस से उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अर्बन मार्केट के साथ, जैसे कि हम जो सिटीज है बड़ी, जो हम जिसे बोलते हैं कि मेट्रो सिटीज, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहां हम जाके सामान बेचते हैं, हम वही सामान हमारे लोकल सिटी में नहीं बेचते हैं, है ना। क्योंकि मुंद्रा में बनाने वाला बाटिक का आदमी शायद बाटिक का कुछ थोड़ा बहुत सामान मुंद्रा में बेचेगा, लेकिन वो वेजिटेबल डाई और बहुत अच्छी साड़ी जो सिल्क के ऊपर प्रिंट की हुई है वो बॉम्बे में किसी एग्जीबिशन में जाके बेचेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोकल मार्केट खड़े होने में भी बहुत सारी शायद दिक्कतें होनी है। इंटरनेशनल मार्केट की बात तो बहुत थोड़ी दूर है, लेकिन लोकल मार्केट में भी चैलेंजिंग चीजें तो आएंगी। Thank you, Paresh. I think this is what we have as a gist in terms of questions. जूही, एक ज्योत्सना का था महत्वपूर्ण कि आखिर में जो दुकानें या बुटीक्स वगैरह में बिकता है माल, वो मैंने वो बताया था, like Paresh was talking about the pricing structure. Okay, but I think it will be interesting to see कि जैसे खमीर में बिकता है या फिर जो वीवर्स खुद बेचते हैं कंपेयर टू लेट्स से आई डोंट नो फैब इंडिया या उस तरह का, तो वो थोड़ा अगर कंपैरिजन किसी के पास हो कि कितना परसेंटेज वीवर को मिलता है। शायद वीवर कोई बताए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे मेरे ख्याल से यहाँ और भी वीवर हैं, जैसे कि रंजन है जो सरली से जुड़े हुए हैं, ब्राइट यंग वीवर हैं, सुरेश हैं जो डायरेक्टली मार्केट से के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा सा होगा कि हम में से कोई बताए, इससे अच्छा है कोई वीवर बताए। रंजन, आप भी बता सकते हो? राजन आंसर देने के लिए तैयार है। माइक अनम्यूट करना होगा। हाँ, माइक आपका अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ राजन जी, गति जी बताइए क्या आपका क्वेश्चन है? हाँ परेश। राजन, ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम जो सामान बेचते हैं वो सामान में हमको उसमें वीवर को वेजिस क्या मिलता है, क्या हम ऑन करते हैं? और जो और सारे बुटीक हैं, जैसे कि और बड़े चेन स्टोर शॉप हैं, वहाँ जो सामान बिकता है और ये जो सामान हम जो बेचते हैं उसमें फर्क क्या है? हमें कितना अच्छा प्राइस इसमें मिलता है अगर हम सामान डायरेक्ट ग्राहक को बेचते हैं? पहले तो एक ये बात है कि जैसे आप तो मुझसे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस वाले, मैं तो अभी जैसे नया हूँ इसमें। आप शायद मेरे फादर फादर्स को जानते होंगे। तो पहले तो एक ये है कि मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले कैसे कस्टमर को डील करते हो, कैसे आप कस्टमर से डील कर रहे हो, किस टाइप, किस क्वालिटी की, किस डिज़ाइन, क्या थीम है, उस कैसा आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और आपका प्राइस के लिए कितना सूटेबल प्रोडक्ट। जैसे आप डिजाइनर्स देख लीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं तो उनके जो प्राइजेज है वो बहुत हाई है। एज आर्टिजन आप बात करो तो आर्टिजन जैसे कि लाइक पर सोल वीव की तो 500 वो मतलब एक वेज उसको मिला एक सोल का 500 आप मान लो यार्न का, तो कम से कम 2000 में सेल होना चाहिए एज आर्टिजन। अगर वही आप जैसे खमीर मान लीजिए कोई 1000 रुपीज में काला कॉटन स्टॉल वो दे रहे हैं किसी को, तो वो ऑब्वियसली एक यूजुअल बात है कि जो 1000 में देंगे तो सामने वाला बुटीक या स्टोर वाला 2500 में भी सेल कर पाएंगे, या कैसा मतलब कस्टमर है वो डिपेंड करता है। ओके just because of प्रोडक्ट के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से वो चेंज होता है, ऐसा है। या जो नहीं, Ghatat bhai, your question we couldn't hear, it was breaking up. नो व्हाट राजन भाई ये बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट और डिजाइन के हिसाब से चेंज होता है, बट इसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक वीविंग का वेज का कंपोनेंट रहता है, एक यार्न का कंपोनेंट रहता है, और बाद में वो सप्लाई या जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं वो कंपोनेंट रहता है, ऐसा है। ओके अभी एक क्वेश्चन आया है कि क्या जो आप हमारी कम्युनिटी है, आर्टिजन कम्युनिटी है, क्राफ्ट्स पीपल की कम्युनिटी है, उनको क्या सपोर्ट चाहिए डिजाइन कम्युनिटी में अभी फ्यूचर में कोविड के बाद? कौन से तरह का
सपोर्ट आपको चाहिए होगा डिजाइन कम्युनिटी से? मैं एक लाइन सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए कि परेश जो भाई भी प्लीज। डिजाइनर हैं या जो भी डिजाइनर हैं, छोटे डिजाइनर भी हैं, छोटे छोटे जिनके बुटीक हैं, और जो कुछ बड़े डिजाइनर भी हैं जो आज खुद के शोरूम है, अलग अलग चेन स्टोर भी हैं। अगर वो आने वाले आफ्टर द लॉकडाउन आने वाले 6 महीने तक वो डायरेक्ट आर्टिजन के साथ हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर दें अभी, और 1 साल के बाद अगर वो उसका एक बहुत अच्छा सेल करें, उसका एक शो करें, दैट वन इज ए बहुत अच्छा चीज होगा कि अभी आर्टिजन का काम भी उसको थोड़ा बहुत जो काम मिल रहा है वो भी मिल जाएगा, ना कि ऑर्डर कैंसिल या उसको रुकवाने के अलावा उसको थोड़ा थोड़ा काम देते रहें, ताकि आर्टिजन अपना जो काम है वो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो कि भाई अभी तो बिल्कुल बंद हो गया यार, मार्केट ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो फैक्ट्री में चला जाता हूँ। ऐसे ना हो, उसके लिए एक छोटे डिजाइनर हैं या जो भी बड़े डिजाइनर, वो प्लीज अगर 6 महीने का कोई ऐसा प्लान बनाए, और जो भी डायरेक्ट आर्टिजन के साथ आप काम करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, तो ये 6 महीने का प्लान करके आप उन्हें आप दो। हालांकि आपको 500 मीटर के कपड़े का ऑर्डर नहीं है, आप अगर उनको 50 मीटर का ऑर्डर 3 महीने के में एक बार भी देंगे तो उनके लिए बहुत होगा। थैंक यू। आप लोगों को कुछ ऐड करना है इसमें एज डायरेक्ट? एक्चुअली सारे तो डिजाइनर्स ही हैं, हमारे जितने वीवर्स हैं इधर जुड़े हुए सब डिजाइनर और वीवर सब दोनों है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ टाइम घटित जी, हम लोग तो बात कर सकते हैं 1 और घंटा, आई एम श्योर। यस यस यस। लेकिन वी आर प्रेस फॉर टाइम। कुछ लोग हमारे सेशन से निकल भी गए आई थिंक, क्योंकि थक गए। So just for the audience, I'd like to say a big thank you for being patient and being with us for these 2 hours. It was supposed to be 1.5 hours. I hope on a general level, people have gotten an idea of, what is one of the communities in our country going through right now in terms of the lockdown, but also otherwise how they've kept themselves relevant. Because this is an interactive session, we are done with it. I'd like everybody of you to switch on your videos, your cameras, so that we can all see each other once. Can all of you please switch on your cameras so we can see all of you? Okay. Great. So thank you so much. And we have another 5 minutes. So if any of you want to say something directly to the group that's collected here, please unmute your mic and say so. Otherwise, आप सबको thank you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, मिल के इस तरह, और आप लोग की कहानी जानते हुए, ये आप लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आई एम श्योर कि आप लोग इसके थ्रू निकल जाओगे बहुत अच्छी तरह। और लास्ट वर्ड्स ये है कि मैंने शुरुआत में एक बहुत बड़ी गलती की कि मेरे जो 2 पार्टनर्स हैं इसमें, संगीता और विनय को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जिन्होंने ये पूरा कॉल सेटअप किया है, ये पूरा सेशन सेटअप किया है। तो विनय आप हैं, आपका कैमरा ऑन है? और Sangeeta, is your camera on? Okay. So Vinay and Sangeeta have been a great support in setting up these Vartas for us, and these Vartas will continue. The next week will be even more interesting. We've got Ilango, who's going to come in from Kerala and talk to us about a self-sufficient village economy. Tamil Nadu, Sangeeta. Oh, sorry, Tamil Nadu. Oh, sorry. From Tamil Nadu. So do join us. If you've sent your email addresses to us, we will send you the next Varta details as well. If you have any further questions, do write to us. We will share on our blog the contacts of all the participants, the main speakers here. So we'll give you their phone number and email address. So if you want to contact any one of them directly for future work, please feel free to go ahead. Any last words, Ghatit, Ashish, Sangeeta, Vinay? No? Please Okay.
Any participant want to speak? Anyone wants Yeah. to speak? Yeah. One question could be कि जो हमारा जो रिपोर्ट है संधरणी रिपोर्ट, जिन लोगों ने ईमेल अपने दिए हैं उन सबको हम भेज सकते हैं अगर चाहते हैं वैसे, या फिर लिंक भेज देंगे ऑनलाइन, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। Fantastic, great. So if anyone else amongst the group that's here, we can see quite a few familiar names and not. Meera, you've come back. Do you want to give us your last bits about the handloom handicraft sector and its long-term future? Sorry, Juhi, my video is very bad. That's okay. We can hear your lovely voice. That's good enough. So actually, I was going to pose a question which had come to us earlier to you, but then I saw you offline. There was a general understanding of what do we see as long-term and short-term plans for the handloom sector for it to survive through this crisis. Sorry, can you just say that again? How do you perceive, or what do you see as short-term and long-term issues or methods to survive through this crisis for the handloom and handicraft sector? Actually, frankly, Juhi, I've been having some conversations with a few people, and I feel in terms of, there have been a lot of prognosis, a lot of analysis. Okay, let me speak in Gujarati so that the viewers can also understand. Perfect. Okay. Maybe Hindi, Meera, everybody. Yeah, okay, Hindi. Okay, सबको मेरा नमस्ते. खास करके बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ ये मीडियम द्वारा देखना बहुत टाइम के बाद. तो I also thank आशीष and जूही for this. मेरा कहना सिर्फ ये था, जूही बहन ने जो मुझे अभी प्रश्न पूछा, कि मैं काफी लोगों के साथ अभी बात कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है, ये जो प्रश्न सब पूछ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है. या तो क्या इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जाएगी, क्या लोगों के पास, क्योंकि अभी वो घर से काम करेंगे, तो क्या उनके पास और पैसा कुछ होगा दूसरे चीजें के ऊपर स्पेंड करने के लिए, ये क्या होने वाला है, कैसे इकोनॉमी में क्या बदलाव आने वाला है, ये किसी को पता नहीं है. तो एक साल तो हमें सब देखना पड़ेगा और साथ में दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन एक चीज निश्चय है कि कच्छ को मैं खास जितना तक मैं जानती हूँ कि हमेशा कुछ भी ऐसा आपत्ति आई है, जैसे कि भूकंप भी आया, तो एक साल बहुत मुश्किल आई, 1-2 साल बहुत मुश्किल आई, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से कुछ बहुत अच्छा निकला. तो उम्मीद है कि इसमें भी ये होगा. ठीक है, एक साल शायद हमें सबको मुश्किल आए, लेकिन इसमें से कुछ अच्छा डेफिनेटली निकलेगा, कुछ नया इसमें से निकलेगा. और जहां तक मैं सबको जानती हूँ, कच्छ में ये उनका पहला पहल ये ही करेंगे. तो बस और कुछ तो मेरे पास ज्ञान नहीं है कहने के लिए. Thank you so much. हमें भी लग रहा है कि कच्छ के व्यूअर्स इसमें से कुछ कोरोना शॉल या कोरोना हैंडलूम शॉल या कोरोना स्टॉल या ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट रेंज भी निकालेंगे और नया डिजाइन इसमें से इंस्पायर होके निकलेगा. ऐसा है. अटित भाई, करुणा बना दीजिए उसको. करुणा, ठीक है, करुणा करें. I'd like to share some thoughts, Juhi. Yes, please, Sangeeta, please. Yeah, that was, thank you everyone. That was a really wonderful session. Just a thought taking off from what Meera shared, I would definitely like to know more about what Meera herself does. And also taking off from the last question from Manas, comment on the chat window where he says, I want to see what products are made. I want to include this in the farmers market movement. Yay, Manas. Manas or series where he talked about the Gurgaon organic farmers market, and also personally I've been part of the farmers market movement, and one of the things we are trying to see is how to link up all the local markets across India. And firstly, would like to share that this Varta is not just a place where people come and listen and leave, but it's our attempt to create a community of people who care for each other and can support each other.
Sangeeta, I'll just translate this. I want to share. I want to tell the viewers who've come today that we're all in this together, and we will figure out a way. It's not something that you have to figure out by yourselves. And as the first step, instead of thinking of if not Europe, how do we sell in the most local market, and how do we make that work, and looking at the challenges and feeling overwhelmed, we can think of sending it to the Gurgaon Organic Farmers Market, or across through our networks. We can get that local first, and then keep, of course, nothing like selling in your own towns and nearby cities, but we'll get to that. But just want to share that let's keep this conversation going and move in that direction, and there's a lot of hope. मैं ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो संगीता जी बोल रही हैं कि एक्चुअली जो ये प्रश्न आया था मनस जी से, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर रहे थे वार्ता में, जो गुड़गांव ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट चलाते हैं, तो उनका प्रश्न था कि उनको पहले तो आपके जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो और देखने हैं, और उनको देखना है कि ये ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट में कैसे इंक्लूड करें। तो संगीता जी ये बता रही थी कि एक्चुअली ये जो वार्ताज है, हम लोग सिर्फ डिस्कशन नहीं करना चाहते, बट हम इसको एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकें आगे। और जैसे अभी एक आइडिया आया है कि एक्चुअली ये हो सकेगा मनस के थ्रू, एंड मनस यू आर हियर ऑन द कॉल, आई जस्ट सॉ यू फॉर अ मिनट, देयर यू आर, कि आगे हम ये कॉन्वर्सेशन अब यहाँ से 1-on-1 ले जाएंगे, और मनस जी को हम हेल्प करेंगे कि आपसे कांटेक्ट करें और देखें कि अगली बार जब ये मार्केट खुलता है कि हमारे कच्छ के प्रोडक्ट्स वहाँ कैसे जाएं। तो जितना भी हो सके ये एक लोकल मार्केट में इसकी जितनी हम ग्रोथ कर सके हम ट्राई करेंगे। तो यही संगीता जी बोलना चाहती थी। संगीता, सॉरी, आई शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड मीरा बिफोर शी स्टार्टेड टॉकिंग. Meera has been the director of Khameer for 10 years. She has worked in Kutch extensively for, I think, now more than 20 years. Meera, correct me if I'm wrong. Yeah, she closely worked with the weavers, and at present she's writing a book also. She's writing on the weavers. a book. And she's also connected very well in the entire craft sector. One of the people who's worked very much on the ground with the communities. So she's someone that all of us go to for advice and guidance. Thank you. That was very kind and very kind of all of you. Okay. So I think I still. He just put up his hand. Yeah, Manas. Yes, Manas. You want to say something? Yeah, I हिंदी में मनस want to say that online platform. अच्छा, हमारा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे हम लोग लोकल फार्म कर रहे हैं। तो अगर कोई स्पेशल हम एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें एक्सपेरिमेंट की तरह, एक हम प्रयोग कर सकते हैं कि जो वीवर्स हैं उनके जो बनाए हुए सामान हैं, चीज़ें हैं, उनको हम ऑनलाइन पे भी ला सकते हैं, और कोई चैनल क्रिएट कर सकते हैं कि गुड़गांव के कस्टमर्स के लिए गुजरात के बनाए हुए सामान को हम कैसे ला सकते हैं, खासकर कपड़ा और बाकी जो चीज़ें मैंने देखी, कुछ फाइल फोल्डर्स थे या इस तरीके के प्रयोग से हम शुरू कर सकते हैं, फौरन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाजार के खुलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब Wow, that's absolutely the best thing that we can end this session with. ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नोट की तरह हम लोग ये सेशन एंड करेंगे कि आगे काम बढ़ेगा, हम लोग को कोई चिंता की बात नहीं है। और थैंक यू अगेन घटित, परेश, सुरेश, अरुण, ऑल ऑफ यू फॉर दिस, एंड मिलेंगे जल्दी, फिजिकली भी मिलेंगे जल्दी, होपफुली लॉकडाउन हो जाएगा। तब तक stay safe, keep weaving new stories. That's how I'll end it. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Ram Ram. Thank you. Thanks Joey for conducting. Ram Ram. Ram Ram. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye.